Sorry, let me start again. I welcome all of you here. Uh, on the behalf of Jaipur branch ICA Vishal Sharma welcome all of you in this virtual webinar on the topic of comparison of new versus old reassessment under Section 148 of Income Tax Act. Our today's main speaker and special guest is CA Rohit Sogani sir. CA Rohit Sogani is a chartered accountant and has more than 10 years of experience in the areas of direct taxation and foreign exchange management. In the past, he has also worked with Ernst and Young and PricewaterhouseCoopers. He regularly appears before the affiliate forums in the field of direct taxation, such as Commissioner Affiliate and Income Tax Appellate Tribunal, and has many reported cases to his credit. In the past, he has written articles which have been published by Chambers of Tax Consultant, Mumbai, taxsutra.com, taxman.com, etc. He has been a speaker in various seminars and study circle meetings of various branches of ICI. Now, before inviting CA Rohit Sogani sir, I would like to invite our ICI branch chairman, CA Kuldeep Gupta ji, to welcome our special guest. And after that, our session will start. Over to you, Kuldeep sir. Okay. विशाल सर 1 मिनट है, थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, 1 सेकंड। श्योर। विशाल आवाज आ रही है मेरे को? आ रही है सर, आ रही है। यस सर, आवाज नहीं, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही एक्चुअली। I'm audible to others. Rohit Sogani sir, I'm audible to you. यस सर, बाकी तो आ रहे हैं सर के पास। Yes, you are audible. You are audible. है ना? Sorry sir. कंटिन्यू करो आप स्पीकर के साथ, है ना? शायद कुछ टेक्निकल इशू है। Okay. So there is a technical issue with Kuldeep sir. So Rohit Sogani sir, will you take the front seat, sir? Thank you so much. Thank you, Vishal ji, for introducing, and thank you, Kuldeep Gupta ji, Chairman, Jaipur branch, for organizing this webinar on a very important topic of comparison of the old and the new provisions of reassessment. So I will now straight away dive into the topic proper and discuss everything regarding the two provisions. I will share my screen. रोहन भी आपका थोड़ा सा स्क्रीन एडजस्ट करो, आपका मतलब फेस पूरा नहीं आ रहा। राइट, परफेक्ट। Thank you. स्क्रीन दिख रही है मेरी? PPT दिख रही है? Thank you. So I will start now. So good afternoon, friends. We are here to discuss the provisions related to reassessment, the old provisions which were there till 2021, and now the new provisions which have been introduced after 1st of April 2021. So the idea is to bring about the differences which are there between the two provisions, because it will ultimately help us in dealing with those notices in times to come which are issued in the new regime. Now, एक और इशू इसलिए इम्पोर्टेंट है ओल्ड और न्यू रेजिम को समझने के लिए कि अगर आने वाले टाइम में जो भी नोटिसेस इशू होते हैं, तो जैसे ओल्ड रेजिम में लॉ डेवलप हुआ है, उस लॉ का फायदा हम न्यू रेजिम के लिए भी ले सकते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट नॉट ओनली वी अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर under the new law of reassessment, but we also understand what is the difference between the new and the old law. तो जैसा ये आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, जो न्यू रीओपनिंग प्रोविजंस हैं, ये रीओपनिंग प्रोविजंस 1 अप्रैल 2021 के बाद फाइनेंस एक्ट 2021 से अमेंडमेंट आया और 1 अप्रैल 2021 के बाद जो एंटायर स्कीम ऑफ रीओपनिंग है वो पूरी चेंज हो गई. और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली फाइनेंस एक्ट 2022 में भी कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, वो भी अपन चर्चा करेंगे.
और इससे पहले जो स्कीम थी उसको वो काफी पहले से ही चलती आ रही है, रीओपनिंग के प्रोविजंस काफी पहले से ही इनकम टैक्स एक्ट में है। ओवर द इयर्स काफी अमेंडमेंट हुए हैं इन रीओपनिंग प्रोविजंस में, और मैं कह सकता हूं कि जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो इन फेवर ऑफ द रेवेन्यू हुए हैं। और रीओपनिंग करना अंडर द इनकम टैक्स एक्ट बहुत ओवर द इयर्स आसान बना दिया है फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देखिए, जो रीओपनिंग का जो लॉ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जैसा कि अब सभी देख रहे हैं लास्ट 3-4 साल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है। चाहे अगर कोई असेसी कैश डिपॉजिट करवाए अपने अकाउंट में तो उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचती है, या कोई लैंड बेचे या फिक्स्ड एसेट्स बेचे उसकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तक पहुंचती है। बहुत सारी और डिपार्टमेंट्स जो कार्रवाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई जीएसटी डिपार्टमेंट कोई प्रोसीडिंग्स करता है किसी भी असेसी के अगेंस्ट में, तो और उस प्रोसीडिंग्स में कुछ ऑब्जर्वेशंस आती हैं, तो वो सारी ऑब्जर्वेशंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी शेयर होती हैं। ऐसे ही और सारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो मैकेनिज्म है वो काफी इम्प्रूव हो गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। तो इस वजह से जो रीओपनिंग के जो लॉ है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है ऑन विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बिकॉज इतना इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है उन लोगों के पास जिससे वो केसेस को पुराने ईयर्स में भी जाकर रीओपन कर सकते हैं। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आज की तारीख में कोई 2018 या 19 या पहले सालों का कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, तो फिर वो और उन्हें ऐसा लगता है कि ये इनकम प्रॉपर तरीके से असेस नहीं हुई है, तो फिर वो पीछे जाकर उस साल के केसेस को रीओपन कर सकते हैं और असेसमेंट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई एज आई मेंशन्ड, जो लॉ ऑफ रीओपनिंग है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल और अ वेपन विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और क्योंकि क्या हो रहा है कि आप सभी देख रहे होंगे ओवर द इयर्स जो नॉर्मल स्क्रूटनी असेसमेंट्स के जो नोटिसेस हैं उसकी तादाद काफी कम हो गई है, और जो रीओपनिंग के नोटिसेस जो आते हैं सभी देख रहे होंगे कि उसकी तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई है। वो इसी वजह से हुआ है कि जो इंफॉर्मेशन फ्लो है डिपार्टमेंट के पास वो इतना ज्यादा हो गया है, और इस वजह से पॉइंटेड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास आती है, और उस पॉइंटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिपार्टमेंट केसेस रीओपन करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले सालों में भी जो रीओपनिंग की जो लॉ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए। ज्यादा से ज्यादा केसेस रीओपनिंग में आएंगे रादर देन नॉर्मल स्क्रूटनी असेसमेंट्स, बिकॉज हो सकता है कुछ टाइम लैग डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंचने में हो, तो उस टाइम लैग में अगर मान लीजिए नॉर्मल स्क्रूटनी असेसमेंट का टाइम लिमिट निकल जाता है तो डिपार्टमेंट के पास रीओपनिंग का टूल हमेशा रहेगा, और वो इस टूल को बहुत ही अच्छी तरह से अब यूटिलाइज करेंगे। तो जैसा मैंने स्लाइड में बता रखा है कि 1 अप्रैल 2021 के पहले जो रीओपनिंग का लॉ था वो लॉ, मैं ओल्ड रेजिम बोलूंगा इस लॉ को, ओल्ड रेजिम था। और 1 अप्रैल 2021 के बाद जो फाइनेंस एक्ट 2021 से जो नया लॉ इंट्रोड्यूस हुआ है वो टोटली एक रिवैम्प कर दिया है, एक सी चेंज ला दिया है इन द एंटायर स्कीम ऑफ रीओपनिंग। और जैसा मैं बताना चाहूंगा कि अपन सबको ही पता है कि जो रीओपनिंग के सेक्शंस हैं वो 147 से 151 तक जो सेक्शंस हैं वो सारे रीओपनिंग के सेक्शंस हैं। तो वही हम जो पुरानी रेजीम और जो नई रेजीम है उसमें आज अपन डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंसेस आए हैं। नाउ स्टार्टिंग जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस हम 6 भागों में बांट सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस हुए हैं between the old and the new regime. As I mentioned, that old regime is the regime which existed prior to 1st of April 2021, and new regime is something which has been introduced after 1st of April 2021. Of course, after 1st April 2021, there have been further amendments to the scheme of reopening
फ्रॉम बाय फाइनेंस एक्ट 2022, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे अंडर द न्यू रेजिम। जो डिफरेंसेस हैं, जो कंपैरिजंस हैं बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू रेजिम, ये मैंने 6 चीजों में डिवाइड करे हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो हमारे को समझना है कि प्री कंडीशन फॉर अज्यूमिंग ज्यूरिसडिक्शन फॉर रीओपनिंग। इसका ये मतलब है कि हम समझेंगे कि क्या इनिशियल लेवल पे, किस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और क्या वर्किंग करके असेसिंग ऑफिसर अज्यूम कर सकता है ज्यूरिसडिक्शन। जब मैं कहता हूं अज्यूम कर सकता है ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कब वो केसेस को रीओपन करने में सक्षम रहता है, क्या उसे बिफोर रीओपनिंग उसको अपने तरफ से क्या कार्रवाई करनी है, क्या इंफॉर्मेशन उसके पास आती है जिसके बेसिस पे वो 147 के जो प्रावधान है उनको वो ट्रिगर कर सकता है। सो पहला अपन डिस्कस करेंगे प्री कंडीशन फॉर अज्यूमिंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर रीओपनिंग। देन सेकेंड अपन डिस्कस करेंगे कि जब 148 का नोटिस आता है, तो 148 के नोटिस के आने से पहले कुछ चीजें प्री नोटिस उसको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं असेसिंग ऑफिसर को, तो वो प्री नोटिस जो स्टेप्स हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। और इसमें जो न्यू रेजिम और जो ओल्ड रेजिम है उसमें काफी डिफरेंसेस आ गए हैं, वो अपन स्पेसिफिकली डील करेंगे इस सेशन में। देन अपन डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्या असेसिंग ऑफिसर एडिशंस कर सकता है, और जो पुरानी रेजिम में इनकम टैक्स ऑफिसर के पास क्या पावर्स थी एडिशंस करने की, और नई रेजिम में क्या पावर्स हैं, वो अपन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्या हो सकता है वो डिस्कस करेंगे। देन वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस, बिकॉज ये काफी सबके लिए एक इंटरेस्टिंग इशू है कि टाइम लिमिट क्या रहेगा, बिकॉज काफी कंफ्यूजन है। जो अब नए रेजिम में सेक्शन 149 जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें काफी इश्यूज हैं, काफी इंटरप्रिटेशनल इश्यूज हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या टाइम लिमिट है फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर द न्यू लॉ। देन सैंक्शनिंग अथॉरिटी की बात भी अपन डिस्कस करेंगे, और जब मैं इन स्लाइड्स पे आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी का क्या महत्व है, ये लॉ हमारे को क्यों समझना चाहिए, सेक्शन 151 हमारे को क्यों समझना चाहिए, कि कौन कौन से केसेस जब रीओपन होते हैं तो कौन कौन सी अथॉरिटीज अंडर द इनकम टैक्स लॉ उसको अप्रूव करता है, वो हमारे को समझना रहेगा। एंड लास्टली अपन समझेंगे कि जो सर्च या उससे रिलेटेड केसेस हैं उसमें इस न्यू रेजिम में क्या चेंजेस आए हैं। और जैसा अभी तक सभी को पता होगा कि पहले नॉर्मली जो सर्च या उससे रिलेटेड केसेस थे उसके स्पेसिफिक सेक्शंस हुआ करते थे, वो नॉर्मल रीओपनिंग के रेजिम में नहीं आता था। बट अब जो सर्च या होते हैं वो 148 में ही कवर हो गए हैं अब नए रेजिम में। पुरानी रेजिम में एक सेक्शन 153A या 153C में असेसमेंट्स हुआ करते थे, बट उन सबको अब हटा दिया गया है और सब कुछ रीओपनिंग में ही लेकर आ गए हैं, तो वो भी अपन ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो अप्रोक्सीमेटली अभी 4:15 हुए हैं। द वे आई वांट टू डू इट इज दैट अभी हम 1 घंटा 15 मिनट सारी लॉ को डिस्कस करते हैं, and then we can have a question answer session, we can have an interactive session, because मैं चाहूंगा कि बहुत सारे इंटरप्रिटेशनल इश्यूज सारे सेक्शंस में, बिकॉज ये लॉ काफी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, सो आई वुड वांट एवरीवन टू गिव देयर इनपुट्स, देयर साइड ऑफ द इंटरप्रिटेशन, कि उनको क्या लगता है। सो आई थिंक वी शुड मेक दिस सेशन मोर एंड मोर इंटरेक्टिव, ऑल्दो आई कैन अंडरस्टैंड कि एक वेबिनार फॉर्म में इंटरेक्टिव सेशन होना बहुत डिफिकल्ट है, बट लेट अस ट्राई। और लास्ट के 15 से 20 मिनट में अपन सारे क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, और उससे पहले मैं पूरा एक बार लॉ समझाने की कोशिश करूंगा। नाउ स्टार्टिंग विद, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि प्री कंडीशन फॉर अज्यूमिंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर 147। प्री कंडीशन फॉर अज्यूमिंग ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि क्या असेसिंग ऑफिसर किस बेसिस पे किसी असेसी का केस रीओपन कर सकता है। और प्री कंडीशन में काफी चीजें होती हैं। जो ओल्ड रेजिम की बात करूं, ओल्ड रेजिम मतलब 1 अप्रैल 2021 से पहले जो लॉ था, उसमें हम सबको ही पता है कि जो 147 सेक्शन था
वो स्टार्ट होता था if the assessing officer has reason to believe that income chargeable to tax has escaped assessment. So जो starting words थे section 147 के वो थे reason to believe के, और reason to believe किसके पास होना चाहिए? वो होना चाहिए assessing officer के पास। ये reason to believe का बहुत ही ज्यादा महत्व था, और जो भी जितने भी केस लॉज हुए हैं सेक्शन 147 में, उसमें रीजन टू बिलीव का इंपॉर्टेंस दिया गया है, और उसमें कहा गया है कि इसमें लिखा है कि असेसिंग ऑफिसर शुड हैव रीजन टू बिलीव। तो इसका मतलब सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर पे ये ओनस डाल दिया गया है फॉर फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। और रीजन टू बिलीव का क्या महत्व है कि सबसे पहले तो जब भी असेसिंग ऑफिसर कोई केस को रीओपन करेगा तो उसके पास एक टेंजिबल मटेरियल होना चाहिए। मैं उसको एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक टेंजिबल मटेरियल होना चाहिए, और वो जो टेंजिबल मटेरियल है, जो भी उसके पास ऑन रिकॉर्ड कुछ एविडेंसेस होने चाहिए जिससे कि वो फॉर्मेशन ऑफ बिलीव करे कि किसी भी असेसी की इनकम एस्केप हो गई है असेसमेंट से। जो बिलीफ है देयर हैज टू बी, जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है देयर हैज टू बी सम नेक्सस विद द एस्केपमेंट ऑफ इनकम। मतलब जो भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड विद द असेसिंग ऑफिसर है, उससे असेसिंग ऑफिसर को ये पता लग जाए कि जो भी इनकम है बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल सर्टेन इनकम ऑफ द असेसी हैज एस्केप्ड असेसमेंट। देन जो थर्ड रिक्वायरमेंट होती थी रीजन टू बिलीव की, कि असेसिंग ऑफिसर को अपना माइंड अप्लाई हमेशा करना पड़ेगा ऑन द मटेरियल, बिकॉज जो मैंने पहले जो 2 स्टेप्स बताए उसमें असेसिंग ऑफिसर को अपने दिमाग से ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी मटेरियल उसके पास है वो एक टेंजिबल मटेरियल है, और उस मटेरियल से पता लग रहा है कि किसी भी असेसी की इनकम एस्केप हो गई है असेसमेंट से। So application of mind by the assessing officer was an important element for formation of belief because of the words reason to believe. And lastly, इन सब चीजों से असेसिंग ऑफिसर के पास ये ओनस था, ये रिक्वायरमेंट थी कि असेसिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ दैट मटेरियल एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करे, एक कंक्लूजन ड्रॉ करे कि देखिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस मटेरियल मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ करता हूं कि जो असेसी है उसकी इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, और फिर उसे एक रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ते थे इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, और उसके बेसिस पे केसेस रीओपन होते थे। बट अब की तारीख में आज जो हम नया लॉ देखते हैं उसमें रीजन टू बिलीव की रिक्वायरमेंट को पूरा की पूरा हटा दिया है। सो अब जो पहले जो स्टार्टिंग वर्ड्स थे ऑफ 147 वाज if any income chargeable, if the assessing officer has reason to believe that any income chargeable to tax has escaped assessment for any assessment year। अब ये जो वर्ड है वो रीजन टू बिलीव पूरा हटा दिया गया है, और अब स्टार्टिंग वर्ड है if any income chargeable to tax in case of the assessee has escaped assessment। सो रीजन टू बिलीव का जो रिक्वायरमेंट थी असेसिंग ऑफिसर पे, जो इनिशियल बर्डन था ऑफ प्रूविंग बेस्ड ऑन द टेंजिबल मटेरियल, वो सारा इनिशियल बर्डन हटा लिया गया है, क्योंकि अब सिर्फ जो वर्ड्स हैं वो ये हैं इफ एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। सो असेसिंग ऑफिसर को सिर्फ इतना ही देखना है अभी कि कोई इनकम जो कि चार्जेबल टू टैक्स थी, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के परव्यू में आती थी, क्या वो इनकम प्रॉपर तरीके से उस पर टैक्स दिया गया है या नहीं दिया गया है, और अगर नहीं दिया गया है तो फिर वो रीओपन कर सकता है। उसे कोई भी मटेरियल देखने की जरूरत नहीं है, उसे कोई भी नेक्सस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसको प्राइमा फेसी अपना माइंड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई प्रॉपर इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की अब जरूरत नहीं है। और मैं आगे डिस्कस करूंगा कि रीजन टू बिलीव किस चीज से रिप्लेस हो गया है। सो रीजन टू बिलीव रिप्लेस हो गया है इंफॉर्मेशन विद सजेस्ट। सो आप काफी देख रहे होंगे कि काफी सारी इंफॉर्मेशन, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस करा कि काफी सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास आती है। तो अभी तक क्या हो रहा था 1 अप्रैल 2021 से पहले, कि जो भी इंफॉर्मेशन आती थी
असेसिंग ऑफिसर के पास, असेसिंग ऑफिसर को की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से देखे, वो प्रॉपर तरीके से असेस करे, अपना माइंड अप्लाई करे और फिर वो एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करे कि देखिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आई हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट द इनकम ऑफ द असेसी हैज एस्केप्ड असेसमेंट। बट अब ये जो इनिशियल जितनी भी कार्रवाई करनी थी असेसिंग ऑफिसर को, अब वो करने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ अगर उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, वो इंफॉर्मेशन के बेसिस से वो रीओपन कर सकता है केस। बस उसे यही स्टैब्लिश करना है इनिशियल लेवल पे कि द इनकम which was chargeable to tax in the case of the assessee has escaped assessment। मतलब जो भी इनकम है वो एस्केप हो गई है असेसमेंट से और इस वजह से वो रीओपन कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी असेसी ने कोई लैंड सेल करी है, तो अगर मैं ओल्ड रेजिम की बात करूं जिसमें रीजन टू बिलीव वाले वर्ड्स थे, तो उसमें तो असेसिंग ऑफिसर के पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है, असेसिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सबसे पहले तो वो जो सेल डीड है असेसी की, जो लैंड सेल करी असेसी ने, उसकी पर्टिकुलर सेल डीड या जो भी सब रजिस्ट्रार से उसके पास इंफॉर्मेशन आई है लैंड सेल की, उसकी पूरी डिटेल्स वो इकट्ठी करे। उन डिटेल्स से वो डिटरमाइन करे कि क्या ये जो भी इनकम हुई है इस लैंड डील पे, क्या उस असेसी ने उस इनकम को ऑफर कर दिया है टैक्स के लिए, या कि देयर इज सम एस्केपमेंट ऑफ इनकम, या कुछ एलिमेंट है इनकम का जो उसने ऑफर नहीं करा है। उसको अपना माइंड भी अप्लाई करना था कि वेदर दैट लैंड इज एन एग्रीकल्चर लैंड और नॉन एग्रीकल्चर लैंड, बिकॉज अगर एग्रीकल्चर लैंड होगी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड होगी, तो फिर हो सकता है इनकम टैक्स देने के लिए नहीं हो, तो फिर उस केस में उसको अपना माइंड भी अप्लाई करना पड़ता है। और उन सब बेसिस से, उन सब मटेरियल के बाद में उसको असेसिंग ऑफिसर को एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करना पड़ता था कि हाँ, जब ये जो असेसी ने जो भी लैंड सेल करी है, वो मेरे पास पूरे एविडेंसेस हैं कि लैंड सेल करने के बाद असेसी को कुछ फायदा हुआ है, कुछ इनकम हुई है इन दिस ट्रांजैक्शन, और उस इनकम के बेसिस पे टैक्स एस्केप हुआ है असेसमेंट से, इनकम एस्केप हुई है असेसमेंट से, और अब मैंने पूरा माइंड अप्लाई कर लिया है और आई हैव रीजंस टू बिलीव दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। इसके अगेंस्ट जो नई रेजीम है, जैसे ही असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आती है कि किसी असेसी ने लैंड सेल करी है, उसके बेसिस पे ही अगर वो प्राइम फेसे ये निकाल ले कि जो भी उन्होंने इनकम होनी चाहिए वो इनकम ऑफर नहीं करी टैक्स के लिए, तो फिर वो रीअसेसमेंट कर सकता है। बिकॉज बहुत सारे केसेस इन द पास्ट ऐसे होते थे जिसमें सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर केसेस को रीओपन कर देते थे, बट कोर्ट्स इन अपीलेट प्रोसीडिंग्स उन रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर देते थे फॉर द रीजन कि सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रीओपनिंग नहीं हो सकती। एज अगेंस्ट दैट, अब क्योंकि उस समय जो लॉ था वो रीजन टू बिलीव वाला लॉ था, पर अब एज अगेंस्ट दैट अब सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रीओपनिंग हो सकती है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज किसी असेसी ने कैश डिपॉजिट करवाया, और अगर कैश डिपॉजिट करवाने के बाद अगर मैं ओल्ड रेजिम की बात करूं जब रीजन टू बिलीव वाला लॉ था, तो ओल्ड रेजिम में तो असेसिंग ऑफिसर को वो कैश डिपॉजिट जो भी हुए हैं उनको देखना पड़ता था, उसका सोर्स एक तरह से स्टैब्लिश करना पड़ता था कि ये कैश कहाँ से आया होगा असेसी के पास, कुछ मटेरियल उसके पास होते थे, एंड वो उसको अपना माइंड अप्लाई करना पड़ता था और फिर एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करना पड़ता था। एज अगेंस्ट दैट, अंडर द न्यू लॉ, सिर्फ अगर उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि देखिए कैश असेसी ने डिपॉजिट करवाया है, और प्राइम फेसे जो असेसिंग ऑफिसर है वो असेसी की रिटर्न देख लेता है जो ऑलरेडी फाइल्ड है, और उसके बेसिस पे अगर वो एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लेता है प्राइम फेसे की कुछ ना कुछ इसमें इनकम थी और वो एस्केप हो गई असेसमेंट से, सो असेसिंग ऑफिसर उस असेसी का केस अंडर द न्यू रेजीम रीओपन कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि पहले जो वर्ड्स थे वो मैंने जैसे बताया कि पहले वर्ड्स थे रीजन टू बिलीव दैट इनकम ऑफ द असेसी हैज एस्केप्ड असेसमेंट,
but now the words are information which suggests. सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही रीओपनिंग हो सकती है, उसमें कोई अब दिक्कत नहीं है. एंड सेकेंडली सजेस्ट वर्ड और यूज करा गया है. सजेस्ट वर्ड का इटसेल्फ ही मीनिंग ये होता है कि असेसिंग ऑफिसर को डीप डाइव नहीं करना पड़ेगा ऑन द इंफॉर्मेशन. अगर प्राइमा फेसे असेसिंग ऑफिसर के पास कुछ इंफॉर्मेशन आ जाती है विच प्राइमा फेसे सजेस्ट दैट किस कुछ इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट, तो फिर वो रीओपन कर सकता है. इसी के साथ ही जो इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट, बिकॉज जो रीजन टू बिलीव था वो सेक्शन 147 में लिखा हुआ था, वो सेक्शन 147 से अब पूरा डिलीट कर दिया है रीजन टू बिलीव, और इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट इंट्रोड्यूस हो गया है सेक्शन 148 में. जो नया सेक्शन 148 है उसमें इंफॉर्मेशन विद सजेस्ट इंट्रोड्यूस हो गया है. और जो एक्सप्लेनेशन 1 है सेक्शन 148 का, उसमें कुछ 5 चीजें दी गई हैं और उसमें मान लिया गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन विद सजेस्ट है दैट विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट, वो ये 5 चीजें मान ली जाएंगी. सो एक सॉर्ट ऑफ एक डीमिंग फिक्शन आ गया है कि अगर इन कैटेगरीज में केस फॉल हो जाता है तो फिर उस केस में it will be suggested, it will be deemed that the income of the assessee has escaped assessment, और उसके बेसिस पे assessing officer केस रीओपन कर सकता है. वो एक बार मैं डिस्कस करना चाहूंगा. सबसे पहले जो एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 148, जैसे मैंने कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि जो भी इंफॉर्मेशन इन 5 पैरामीटर्स में फॉल कर रही है उसके बेसिस पे रीओपनिंग हो सकती है. सबसे पहला जो है information in accordance with the risk management strategy formulated by board. board मतलब CBDT. तो CBDT एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी से एक स्ट्रेटजी फ्लोट करेगी और उसके बेसिस पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन उस परव्यू के अंदर आ जाती है तो उस केस में रीओपन हो सकता है. सो फॉर एग्जांपल अगर CBDT ये डिसाइड कर लेती है कि अगर किसी ने कैश एक्स अमाउंट से ज्यादा डिपॉजिट करवाया है तो ऑटोमेटिकली जो पोर्टल है, और ये नॉर्मली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनसाइट पोर्टल यूज कर रहा है अपना, तो इनसाइट पोर्टल जो है उस पे इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से गैदर हो जाएगी और उस पोर्टल के बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन जो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर है उसके पास वो ट्रिगर हो जाएगी कि देखिए ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी से ये परव्यू में आ रहा है ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, और उसके बेसिस पे केस रीओपन हो सकता है. सो इसका जो दायरा है वो काफी बड़ा कर दिया है. पहले के सिनेरियो जैसी बात नहीं है जिसमें असेसिंग ऑफिसर को डिफरेंट सेगमेंट से डिफरेंट ब्रांचेस से ऑफ द डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन आती थी, चाहे इन्वेस्टिगेशन विंग से या किसी और असेसिंग ऑफिसर से, और उसके बेसिस पे उसको अपना दिमाग लगाना पड़ता था. अब जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो ऑनलाइन, उनका सर्वर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उस ऑनलाइन सर्वर पे अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है जो कि उनके रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के परव्यू में आ रही है, जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के परव्यू में आ रही है, तो उसके बेसिस पे वो सिर्फ वो ट्रिगर के बेसिस पे रीओपनिंग हो सकती है, उससे आगे उनको जाने की जरूरत नहीं है. सो काफी ज्यादा स्कोप वाइड कर दिया है. कोई भी अगर सपोज कल को किसी के जीएसटी की कोई सर्वे होता है तो जीएसटी में कोई इंफॉर्मेशन होती है तो वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के उस पोर्टल पे आ जाएगी डिपार्टमेंट के. अगर कोई लैंड बेचता है, सब रजिस्टर से कोई इंफॉर्मेशन फ्लो होती है तो वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में फॉल कर जाएगी. अगर कोई कैश डिपॉजिट करवाता है तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में फॉल कर जाएगी. सो इसका जो दायरा है वो काफी वाइड कर दिया है और उसके बेसिस पे आराम से कोई भी केस रीओपन किया जा सकता है जब वो ट्रिगर हो जाए. और इसमें पहले एक वर्ड यूज करा गया था कि फ्लैग्ड ऑन द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, अब वो फ्लैग्ड वर्ड भी हटा दिया गया है. तो इसका मतलब अगर कोई भी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के परव्यू में बोर्ड के आ जाता है कोई भी इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो असेसिंग ऑफिसर है वो केस को रीओपन कर सकता है. जो सेकेंड इशू है, सेकेंड पैरामीटर इज ऑडिट ऑब्जेक्शन. देखिए काफी लिटिगेशन पहले ऐसा हुआ कि नॉर्मली असेसमेंट्स हो जाते थे
और फिर डिपार्टमेंट जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लोग हैं वो डिपार्टमेंट में आकर ऑडिट करते थे, और ऑडिट के तहत कोई अगर ऑब्जर्वेशन होती थी तो उसके बेसिस पे रीओपनिंग की कार्रवाई असेसिंग ऑफिसर चालू करता था। बट इसमें काफी ज्यादा लिटिगेशन हुआ, क्योंकि उन्होंने कोर्ट्स ने कहा कि देखिए असेसिंग ऑफिसर को खुद का एक माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, वो सिर्फ ऑडिट ऑब्जेक्शन अगर किसी ने रेज करा है तो उसके बेसिस पे केस को रीओपन नहीं कर सकता। और काफी सारे केसेस जो थे वो ऑडिट ऑब्जेक्शन की वजह से ही क्वैश हो गए, बिकॉज असेसिंग ऑफिसर जब रीजंस रिकॉर्ड करता था तो वो स्पेसिफिकली लिख देता था कि ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिट ऑब्जेक्शन आई हैव रीजन टू बिलीव दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। सो कोर्ट्स, जैसा मैंने कहा, कि कहते थे कि ऑडिट ऑब्जेक्शन की वजह से नहीं हो सकता कोई भी केस रीओपन, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ओन एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर केस रीओपन हो सकता है। तो इस वजह से काफी सारे जो रीओपनिंग थे वो क्वैश हो गए। बट सब्सिक्वेंटली जो नई रेजीम है उसमें ऑडिट ऑब्जेक्शन को एक डीम्ड इंफॉर्मेशन मान ली गई, और अगर अब कोई भी आने वाले टाइम में अगर कोई भी डिपार्टमेंट की ऑडिट होती है, सीएजी कोई ऑडिट करता है और उससे अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी रिसीव होती है कि कोई पर्टिकुलर इनकम एस्केप हो गई है, या जो भी असेसिंग ऑफिसर ने कोई डिडक्शन अलाउ करा है वो प्रॉपर तरीके से अलाउ नहीं करा है, और ये जो इशू है वो ऑडिट ऑब्जेक्शन के तहत रेज होता है बाय सीएजी या बाय एनी अदर ऑडिट विंग ऑफ द डिपार्टमेंट, तो उसके बेसिस पे रीओपनिंग हो सकती है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और इससे क्या है कि जो भी लॉ पुराने रेजिम में डेवलप हुआ था कि असेसिंग ऑफिसर को खुद का दिमाग लगाना है एंड ही शुड नॉट बिलीव और रिलाई solely on the report of the on the audit objection raised by the CAG, उसके बेसिस पे रीओपन नहीं हो सकता। तो वो सारा लॉ अब चेंज हो गया है और अब उसके बेसिस से आराम से रीओपनिंग हो सकती है। थर्ड जो चीज है, पैरामीटर है, एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एज पर एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 1998। सो जैसा अपन सभी जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर रखे हैं, और उसके तहत उनको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है। जो भी अगर मान लीजिए कोई इंडियन जुरिस्डिक्शन या इंडियन रेजिडेंट का कोई इंडिविजुअल है या कोई एंटिटी है, और अगर उसकी इंफॉर्मेशन सपोज सिंगापुर या और यूके किसी जुरिस्डिक्शन में आती है, तो फिर यूके गवर्नमेंट के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर होए विद द इंडियन गवर्नमेंट। सो अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर होती है विद एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म, तो उसके बेसिस पे रीओपन हो सकता है। देन फोर्थ जो चीज है वो है एनी इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल बाय द एओ अंडर सेक्शन 135A। 135A एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। बेसिकली अब हमारे को ये समझना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट के पास जो सोर्सेज हैं ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन वो मैनीफोल्ड्स इंक्रीज हो गए हैं, और बहुत सारे सोर्सेज से, जो कि पहले डिपार्टमेंट हो सकता है सिर्फ शिकायत के बेसिस पे ही या कोई और जो भी असेसिंग ऑफिसर अपने लेवल पे जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर पाता था उसके बेसिस पे पहले रीओपन होते थे। बट अब वो जमाना बिल्कुल चेंज हो गया है, और अब डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट हो या सेल्स टैक्स हो या और कोई भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या ईडी हो या और कोई भी डिपार्टमेंट हो, जिसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो ऑनलाइन जो डिपार्टमेंट का एक डेटाबेस है, जो सर्वर है, उस पे इंफॉर्मेशन चली जाती है, और उस इंफॉर्मेशन से जुरिस्डिक्शन एओ के पास इंफॉर्मेशन फ्लो हो जाती है। सो अगर कोई भी फेसलेस मैनर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, फिर वो असेसिंग ऑफिसर के पास फ्लो हो जाती है, जो भी जुरिस्डिक्शन असेसिंग ऑफिसर है, और उसके बेसिस से वो रीओपन कर सकता है। लास्ट चीज है, कोई भी अगर केसेस चल रहे हों किसी भी ट्राइब्यूनल में या कोई भी अपीलेट प्रोसीडिंग्स में किसी भी असेसी का, और पता लगता है कि कोई और असेसी की इनकम एस्केप हो गई असेसमेंट से, तो वो भी इसमें आ सकता है। इट विल बी डीम्ड इंफॉर्मेशन एंड उसके बेसिस पे रीओपनिंग करी जा सकती है।
तो अगर अपन जो दो एग्जांपल्स जो मैंने डिस्कस करे, सबसे पहले मैंने एग्जांपल डिस्कस करा था लैंड सोल्ड बाय द असेसी। तो जब लैंड सोल्ड बाय द असेसी, जो जैसे मैंने ओल्ड रेजिम में बताया कि लैंड सोल्ड बाय द असेसी की अगर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है तो असेसिंग ऑफिसर को पूरी ट्रेल चेक करनी पड़ेगी, सारे एविडेंसेस चेक करने पड़ेंगे और उसके बाद ही वो रीओपन कर सकता है। एज अगेंस्ट दैट, अंडर द न्यू रेजिम, अगर कोई इंफॉर्मेशन सब रजिस्ट्रार से असेसिंग ऑफिसर के पास आ जाती है और ओनली ऑन दैट बेसिस ही जो असेसिंग ऑफिसर है वो केस को रीओपन कर सकता है। उसको उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने की जरूरत नहीं है। एट द स्टेज ऑफ अज्यूमिंग जुरिस्डिक्शन वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेक करे बिना सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सब रजिस्ट्रार वो रीओपन कर सकता है केसेस को। ऐसे ही कैश डिपॉजिट की जैसे मैंने बात करी, तो अगर कैश डिपॉजिट हुआ है तो कैश अगर जैसे ही किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि कैश डिपॉजिट हुआ है, solely on the basis of that information reopening is possible in the new regime. Now next जो अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज हुआ है, और जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ओवर द इयर्स जो लॉ ऑफ रीओपनिंग है वो काफी सारे अमेंडमेंट्स आ गए हैं, और वो जो अमेंडमेंट्स हैं वो ज्यादातर इन फेवर ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। वो डिपार्टमेंट की लाइफ को इजी करने के लिए हैं कि वो बहुत आराम से किसी भी असेसी का केस रीओपन कर सकता है। इसी के तहत ये वाला अमेंडमेंट भी आया है। जो ओल्ड रेजिम थी, जो पुराना सेक्शन 147 था, उसमें हम सबको ही पता है कि पहले एक प्रोविजो था, फर्स्ट प्रोविजो था, जिसमें कह रखा था कि अगर किसी असेसी का ऑलरेडी 143(3) में स्क्रूटनी असेसमेंट में असेसमेंट हो चुका है, तो अगर मान लीजिए कोई एसएससी है जिसका स्क्रूटनी का नोटिस आया और उसका ऑर्डर 143(3) में ऑलरेडी पास हो गया है, तो वो फिर वापस से उसका जो केस है वो रीओपन तभी हो सकता था जब असेसिंग ऑफिसर प्रूव कर दे that there was failure on the part of the assessee to fully and truly disclose all material facts. इसका मतलब ये था कि ओल्ड रेजिम में अगर कोई 143(3) का केस है और अगर उसे रीओपन करना था तो असेसिंग ऑफिसर के पास कोई बिल्कुल नया मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ द सेम मटेरियल which was there, which was submitted to the assessing officer during normal scrutiny assessment proceedings. उसके बेसिस से वो रीओपन नहीं कर सकता था, और उसको ये प्रूव करना था कि अगर मान लीजिए वो रीओपन कर भी रहा है तो वो इस वजह से कर रहा है कि जो असेसी है उसने सारी चीजें फुल्ली एंड ट्रूली डिस्क्लोज नहीं करी थी, और उसके बेसिस पे ही वो रीओपन कर सकता था। बट ये जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट सारी जो नई रेजिम है उसमें हटा दी गई है। अब जो नया सेक्शन 147 है उसमें इस तरह का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, और अब आराम से अगर मान लीजिए ऑलरेडी 143(3) में स्क्रूटनी असेसमेंट में केस हो चुका है तो उसके बेसिस पे वापस से रीओपन हो सकता है, एंड असेसिंग ऑफिसर को एट द टाइम ऑफ रीओपनिंग द केस ऑफ द असेसी ही नीड नॉट प्रूव that there was failure on the part of the assessee to fully and truly disclose all material facts. तो इसका मतलब जो पहले इनिशियल बर्डन असेसिंग ऑफिसर पे था ये प्रूफ करने का कि असेसी ने पूरी तरह से चीजें डिस्क्लोज नहीं करी हैं ड्यूरिंग द ओरिजिनल असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, वो सारा जो भी इनिशियल बर्डन है वो असेसिंग ऑफिसर से हटा दिया गया है, एंड अब असेसिंग ऑफिसर आराम से ऑन द बेसिस ऑफ द सेम मटीरियल अगर उसे लगता है तो विदाउट डिस्चार्जिंग एनी ओनस वो वापस से केस को रीओपन कर सकता है। बट इसमें एक ये सवाल आता है कि क्या हर केस में वापस से रीओपन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेम मटेरियल? टू दैट एक्सटेंट मैं अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा ऑफ कैलविनेटर ऑफ इंडिया के डिसीजन का 320 ITR 561, और उसमें कहा गया है कि देखिए चेंज ऑफ ओपिनियन के बेसिस पे रीओपन नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कैलविनेट ऑफ इंडिया में ये कहा कि अगर मान लीजिए किसी स्क्रूटनी असेसमेंट में ऑलरेडी ऑर्डर पास हो चुका है, 143(3) में ऑलरेडी ऑर्डर पास हो चुका है,
और असेसिंग ऑफिसर ने एक व्यू फ्रेम कर लिया है, उस व्यू फ्रेम करने के बाद वो अपना व्यू चेंज नहीं कर सकता या वो अपना ओपिनियन चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर ने ओरिजिनल असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में अगर कोई डिडक्शन को अलाउ कर दिया है, अगर मान लीजिए कोई भी डिडक्शन है जो कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू का इशू था, बट असेसिंग ऑफिसर ने वो डिडक्शन को अलाउ कर दिया है और उसके बाद कोई चेंज इन सर्कमस्टेंसेस नहीं हुए हैं, तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेम एविडेंसेस, सेम इनवॉइसेस, सेम एविडेंसेस वो वापस से अपना व्यू चेंज नहीं कर सकता कि जी ये तो गलत डिडक्शन अलाउ कर दिया, ये तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है या एक्सपेंडिचर ये फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इनकर हुआ ही नहीं है, ऐसा वो व्यू चेंज नहीं कर सकता। सो प्रोबेबली जो चेंज ऑफ ओपिनियन का लॉ है, इवन आफ्टर जो ये फर्स्ट प्रोविजन जो अर्स्टवाइल सेक्शन 147 में था, वो अगर उसको हम हटा भी दें तो चेंज ऑफ ओपिनियन का जो लॉ है वो स्टिल एप्लीकेबल होगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये कही थी कि देखिए ये रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स हैं, ये रिव्यू प्रोसीडिंग्स नहीं है। रिव्यू मतलब कि एक ही चीज को बार बार देखकर असेसिंग ऑफिसर अपना माइंड चेंज करता है, तो ये रिव्यू नहीं है, ये रीअसेसमेंट है। रीअसेसमेंट के लिए असेसिंग ऑफिसर अपना बार बार व्यू चेंज नहीं कर सकता, तो चेंज ऑफ ओपिनियन का लॉ मेरे हिसाब से अभी भी एप्लीकेबल होगा। तो अगर मान लीजिए हमारे कोई केस में 1 अप्रैल 2021 के बाद कोई नोटिस इशू हुए हैं 148 के, और उनके जो केसेस हैं वो ओरिजिनली 143(3) में असेस हो चुके हैं, तो हमारे को ये बिल्कुल लीगल व्यू लेना चाहिए, एक लीगल बैकिंग लेनी चाहिए कि चेंज ऑफ ओपिनियन के बेसिस पे रीओपन नहीं हो सकता। और कैलविनेट ऑफ इंडिया 320 ITR 561 का हम यूज ले सकते हैं, कहते हुए कि दीज आर रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स एंड नॉट रिव्यू प्रोसीडिंग्स। पहला जो डिस्कशन पॉइंट था वो था प्रीरिक्विजिट प्रीकंडीशन फॉर अज्यूमिंग jurisdiction under 148। सो अब असेसिंग ऑफिसर को रीओपन करने के लिए क्या क्या चीजें इनिशियल लेवल पे करनी थी वो हमने डिस्कस करी अंडर द न्यू एंड द ओल्ड रेजिम। अब नोटिस इशू करने के लिए असेसिंग ऑफिसर को क्या करना है, ओल्ड रेजिम में क्या करना था और अब न्यू रेजिम में क्या करना है, वो अपन अब डिस्कस करेंगे। न्यू रेजिम, ओल्ड रेजिम का पहले मैं डिस्कस करता हूं कि जब नोटिस इशू होता है 148 का, तो देखिए फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओल्ड रेजिम इज कि ओल्ड रेजिम में सारी कार्रवाई 148 के नोटिस के इशू के बाद ही चालू होती थी, वेयर एज अंडर द न्यू रेजिम सारी जो भी इनिशियल कार्रवाई है वो नोटिस अंडर 148 इशू करने से पहले ही वो सारी कार्रवाई हुई थी। और इसके लिए एक सेक्शन 148 कैपिटल ए इंट्रोड्यूस करा गया है फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2021, जिससे ये कार्रवाई पहले ही शुरू होगी, वो अपन अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नोटिस, सो फंडामेंटल एक डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड रेजिम एंड द न्यू रेजिम इज that certain things were required to be done prior, after the notice was issued under 148 under the old regime, but under the new regime notice 148 के issue करने से पहले ही assessing officer को कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, which is a welcome move to some extent। अगर वो प्रॉपर तरीके से ये सारे प्रोसीजर को फॉलो करें तो इट इज अ वेलकम मूव, वो अपन आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मैं पहले ओल्ड रेजिम में एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि जब नोटिस 148 का इशू होता है उससे पहले असेसिंग ऑफिसर को, जैसे मैंने बताया कि जो भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे उसको एक सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ते थे, रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद वो 148 का नोटिस इशू करता था। 148 के नोटिस जब इशू करता था तो उसमें ये रिक्वायरमेंट थी कि असेसी को वो कहता था कि आप रिटर्न फाइल कर दीजिए विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग द नोटिस। विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग द नोटिस जब असेसी रिटर्न फाइल कर देता था तो फिर असेसिंग ऑफिसर असेसी को कॉपी ऑफ रीजंस रिकॉर्डेड देता था। उस रीजंस रिकॉर्डेड की कॉपी के देने के बाद असेसी के पास ये राइट था कि वो ऑब्जेक्ट करे
टू द रीजंस रिकॉर्डेड कि देखिए ये केस सही रीओपन नहीं हुआ है। अगर उसे लगता है कि केस गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस से रीओपन हुआ है तो फिर वो ऑब्जेक्ट कर सकता था, एंड देन सब्सिक्वेंटली असेसिंग ऑफिसर एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करता था डिस्पोजिंग ऑफ द ऑब्जेक्शंस, और उसके बाद जो नॉर्मल स्क्रूटनी असेसमेंट्स स्टार्ट होते थे। सो ये जो भी प्रोसीजर था ये 148 के नोटिस के इशू होने के बाद ये सारी कार्रवाई होती थी। और ये जो कार्रवाई है ये लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब नहीं थी, ये लॉ में कहीं भी सेक्शन में प्रिस्क्राइब नहीं थी। ये जीके एंड ड्राइवशाफ्ट इंडिया लिमिटेड 259 ITR 19 सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी जो प्रोसीजर है वो डिवाइस करा था कि जब भी असेसिंग ऑफिसर कोई नोटिस इशू करेगा अंडर सेक्शन 148 तो नोटिस इशू करने के बाद और नॉर्मल स्क्रूटनी असेसमेंट स्टार्ट होने से पहले असेसिंग ऑफिसर को ये सारी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और ये सारी चीजें नोटिस इशू होने के बाद ही होती थी। वेरएस अंडर द न्यू लॉ, अब जो नया लॉ है उसमें परिवर्तन ये आया है कि जो भी कार्रवाई नोटिस इशू होने के बाद अंडर द ओल्ड रेजिम होती थी by virtue of the decision of GK and Driveshaft India Limited of the Honorable Supreme Court, ये सारी जो भी कार्रवाई है अब वो नोटिस इशू होने से पहले ही असेसिंग ऑफिसर को करनी पड़ेगी। और ये बेसिकली जो पहले जीके एंड ड्राइवशाफ्ट या ओल्ड रेजिम में कोई सेक्शन में चीजें नहीं लिखी हुई थी, अब ये सारी सेक्शन में ही चीजें इंट्रोड्यूस कर दी हैं, और इसके लिए एक नया सेक्शन 148 कैपिटल ए इंट्रोड्यूस कर दिया है। और जो कैपिटल ए है वो अपन अब डिस्कस करेंगे कि जो कैपिटल ए सेक्शन है 148 कैपिटल ए है उसमें सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर को अगर लगता है कि कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हो रही हैं जब उसने अभी तक नोटिस इशू नहीं करा है। और जैसा अभी हमने मार्च 2022 में काफी सारे 148 ए की प्रोसीडिंग्स हुई हैं और उसमें नोटिस इशू हैं, तो काफी लोग ये सारी जो प्रोसीजर है वो जानते होंगे, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन मैं एक बार वापस से डिस्कस कर देता हूं कि 148 ए में ये रिक्वायरमेंट है कि नोटिस इशू करने से पहले असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि कोई इंक्वायरी होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो पहले इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, बट वो that inquiry whether it is to be done or not to be done has been left to the wisdom of the assessing officer। वो असेसिंग ऑफिसर ही डिसाइड करेगा कि इंक्वायरी करनी है या नहीं करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंक्वायरी वो एक शो कॉज नोटिस, या अगर मान लीजिए वो उसको लगता है कि कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है तो फिर वो एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा। वो शो कॉज नोटिस इशू करेगा टू द असेसी under clause B of section 148 capital A। So शो कॉज नोटिस असेसिंग ऑफिसर को इशू असेसी को इशू करेगा। और मैं वापस से याद दिलाता हूं कि ये अभी 148 का नोटिस असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को इशू नहीं करा है, ये सारे 148 के नोटिस इशू करने से पहले ही ये कार्रवाई हो रही है। सो पहले ही असेसिंग ऑफिसर 148 कैपिटल ए क्लॉज बी में शो कॉज नोटिस इशू करेगा, असेसी को जवाब देने के लिए कहेगा कि देखिए ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, आपका क्या कहना है कि क्या ये इनकम एस्केप हुई है नहीं हुई है, आपका क्या कहना है। तो वो रिप्लाई मांगेगा असेसी से, और उस रिप्लाई के बाद फिर वो एक वापस से ऑर्डर पास करेगा डिसाइडिंग कि वेदर द केस ऑफ द असेसी शुड बी टेकन अप for reassessment proceedings or not, whether the case of the assessee is fit for issuance of notice under section 148। so वो ये ऑर्डर पास करेगा अंडर सेक्शन 148 कैपिटल ए क्लॉज डी। सो अभी हमने देखा होगा कि काफी सारे केसेस में मार्च और अप्रैल में इस तरह के ऑर्डर्स 148 कैपिटल ए क्लॉज डी के ऑर्डर्स पास हुए हैं, तो ये सारी कार्रवाई उसे करनी पड़ेगी। और जब 148 कैपिटल ए क्लॉज डी का ऑर्डर पास होगा उसके बाद ही नोटिस इशू होगा। नॉर्मल कोर्स में प्रैक्टिकली असेसिंग ऑफिसर साथ ही 148 ए डी का ऑर्डर और 148 का नोटिस दोनों एक साथ ही भेज रहे हैं। सो ये सारी कार्रवाई 148 के नोटिस इशू करने से पहली करनी पड़ेगी। और जब आप नया सेक्शन 148 देखते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये सारी प्रोसीडिंग्स की कंडीशन प्रेसिडेंट है फॉर इशूइंग एनी नोटिस अंडर सेक्शन 148। सो ये बहुत ही वेलकम चेंज है
वेलकम चेंज इसलिए है कि पहले के सिनेरियो में प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ये होती थी कि असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आ जाती थी, वो असेसी को वो इंफॉर्मेशन नॉर्मल कोर्स में कन्फ्रंट नहीं कर पाता था, और सब्सिक्वेंटली नोटिस इशू करने के बाद, रीजन रिकॉर्डेड की कॉपी देने के बाद ऑब्जेक्शंस जब असेसी से लेता था असेसिंग ऑफिसर, तब कई केसेस में ऐसा पता लगता था कि देखिए इसमें तो कोई इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है ही नहीं। तो उसके बाद वो वापस ये पूरी कार्रवाई जो थी 148 के नोटिस की, ये सारी फ्रिवलेस हो जाती थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत ही वेलकम चेंज है कि 148 कैपिटल ए इंट्रोड्यूस पहले ही कर दिया, और उसमें जो भी नोटिस 148 में इशू होने वाले हैं उससे पहले ही असेसिंग ऑफिसर को ये कह दिया कि आप ये पहले ही कार्रवाई कर दीजिए, और अगर इस कार्रवाई के बाद भी आपको लगता है कि इनकम, certain part of the income has escaped assessment, then only initiate 148 notice to the assessees, otherwise not. बट ये इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये जो 148 की कार्रवाई है ये बहुत ही वेलकम चेंज है, बट वेलकम तभी है जब असेसिंग ऑफिसर प्रॉपर तरीके से इसको, ये जो भी स्टेप्स इसमें लिखे हुए हैं उसको प्रॉपर तरीके से करें। नॉर्मल कोर्स में जैसा अभी सबका ही एक्सपीरियंस रहा होगा कि 148A की जो भी कार्रवाई लोगों के सामने हुई थी उसमें असेसिंग ऑफिसर ने ओनली ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन ही 148 कैपिटल ए क्लॉज डी के ऑर्डर्स पास कर दिए। उन्होंने ज्यादातर केसेस में असेसी के जो भी रिप्लाईज थे वो कंसिडर ही नहीं करे गए। सो अनलेस ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से कंसिडर होंगी तो जो इंटेंशन है इस पर्टिकुलर लॉ को लाने का कि लिटिगेशन रिड्यूस करने का, वो तभी फुलफिल हो पाएगा जब ये इनिशियल लेवल पे बिफोर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148 ये सारी कार्रवाई प्रॉपर तरीके से हो। जो भी असेसी रिप्लाई फाइल करता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स असेसी सबमिट करता है टू द असेसिंग ऑफिसर, वो प्रॉपर तरीके से असेसिंग ऑफिसर अप्रेस करे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद then he should come to a conclusion that income of the assessee has actually escaped assessment. तब तो ये सारी कार्रवाई एक फ्रूटफुल एक्सरसाइज होगी, अदरवाइज एक ही आई वॉश की तरह ही हो जाएगा। सो मैं सम अप कर देता हूं, जो जीके एंड ड्राइव शाफ्ट में अंडर द ओल्ड रेजिम नोटिस 148 के इशू होने के बाद जो कार्रवाई हुआ करती थी, वो सारी कार्रवाई अब 148 के नोटिस इशू होने से पहले ही हो गई। पुराने लॉ में ऐसी कोई स्टेप्स इंक्लूडेड, स्टेप्स लॉ में प्रिस्क्राइब नहीं थे। ये जीके एंड ड्राइव शाफ्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये स्टेप्स आए थे। अब नए लॉ में ये स्टेप्स लॉ में ही इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। और अभी भी ये है कि जब नए लॉ में 148 का नोटिस इशू हो जाता है उसके बाद असेसी को रिटर्न फाइल करने के लिए कहा जाता है, जो पहले भी रिटर्न फाइल करने के लिए 148 के नोटिस के बाद कहा जाता था। So to this extent, जो प्री-कंडीशन फॉर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148 है, वो ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू लॉ। यहां तक अगर कोई किसी को सवाल हो, कुछ इशू डिस्कस करना हो तो वी कैन डू इट, अदरवाइज वी कैन गो अहेड एंड डिस्कस द अदर डिफरेंसेस जो मैंने बताए हैं। Shall we Zoom proceed? user, sir, I think we have a query. Zoom user, Yeah. you can unmute yourself and ask your query. If you have any query, please ask. Unmute yourself and ask. हेलो। Yeah. Yes sir. हेलो। हाँ जी बोलिए सर, सुनाई दे रहा है। You're audible. हेलो, आप सुन रहे हैं? Hello. हेलो। Yes sir, बताइए। बताइए हाँ, सर। मैं सीए प्रियव्रत बोल रहा हूँ। अभी आपने जैसे बताया कि 148A का नोटिस आने के बाद में असेसिंग ऑफिसर को कॉज देना है कि भी आपको क्यों ना ये खोला जाए। उसके बाद हमने दिया उसको रिप्लाई कि भी हमारा ये इशू है नहीं, क्योंकि सर्च केस में वो क्या करते हैं कि सामने वाले पार्टी का कोई इशू आया और अपने को नोटिस दे दिया, जबकि अपन रिलेटेड है नहीं उससे और कोई एविडेंस भी नहीं है, और अपन ने उसको रिप्लाई भी दे दिया, उसके बाद भी उसने माना तो है ही नहीं उसको, 148 दे दिया। तो उसका करने का पर्पस तो कुछ है नहीं, करना तो असेसिंग ऑफिसर को वही है जो करना है उसको।
सर ये तो देखिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है। मैं आपकी बात समझता हूँ कि जैसा मैंने अभी भी डिस्कस करा कि नॉर्मल प्रैक्टिकली ये काफी ज्यादा देखा गया कि जो शो कॉज नोटिस 148 कैपिटल ए में असेसिंग ऑफिसर ने दिया, असेसी ने प्रॉपर तरीके से उसका रिप्लाई भी दिया, बट उस रिप्लाई को असेसिंग ऑफिसर ने कंसिडर ही नहीं करा और 148 कैपिटल ए क्लॉज डी का ऑर्डर पास कर दिया और 148 का नोटिस थमा दिया। तो ये सर प्रैक्टिकली हो रहा है। लॉ में काफी अच्छा प्रावधान ये इंट्रोड्यूस हुआ था, बट इन लेटर एंड स्पिरिट ये ऑन ग्राउंड लेवल ये फॉलो असेसिंग ऑफिसर्स नहीं कर रहे हैं। और वो अगर कोई जेन्युइन केस है जिसमें कोई एस्केपमेंट ऑफ इनकम हुई नहीं है तो वो ड्रॉप नॉर्मल कोर्स में प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है। बट सर अभी अगर मेरे हिसाब से ये सारी जो चीजें हैं ये आपको फिर अपील में ही ये इश्यूज डिस्कस करने पड़ेंगे कि देखिए जैसे हम नॉर्मल कोर्स में रीओपनिंग को चैलेंज करते हैं अपील में, वैसे ही इसमें भी रीओपनिंग को चैलेंज करना पड़ेगा, ये कहते हुए कि देखिए जो शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका हमने रिप्लाई दिया, बट विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी माइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर ने इनिशिएट कर दी 148 प्रोसीडिंग्स, 148 कैपिटल ए क्लॉज डी का ऑर्डर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड पास करा और फिर 148 का नोटिस दे दिया। So ideally department should have taken cognizance of all the submissions which are filed under 148A proceedings, but unfortunately practically at the ground level they are not doing so, which is quite unfortunate. And जो envisage करा गया था law while introducing 148 capital A, वो सारा उसके against ही हो रहा है अभी तक। अगेंस्ट हो रहा है, कोई मीनिंग नहीं रहा ना उसका। ठीक है, हाँ सर, मीनिंग नहीं रहा, ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बट अब कुछ कर नहीं सकते। ये अब सिर्फ आप अपीलेट प्रोसीडिंग्स में ही इसको चैलेंज कर सकते हैं। एनी अदर क्वेरी एंड देन वी कैन Yes, sir. I think we have one also. Abhinav Kumar ji, kindly ask your query. यस सर। Sir, unmute कीजिए आप खुद को. हाँ, मैं अभिनव कुमार साहब ने चैट में लिख दिया है 148A में 264 फाइल हो सकता है क्या? सर मेरे हिसाब से जब असेसमेंट ऑर्डर पास होगा तब 264 की पिटीशन फाइल हो सकती है, नॉट एट द स्टेज ऑफ 148 कैपिटल ए क्लॉज डी ऑर्डर। हद से हद हम ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए बहुत ही कोई ग्रॉस एरर है ऑन द पार्ट ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, तो आप हाई कोर्ट में जैसे नॉर्मल ओल्ड रेजिम में अपन जब रीजंस रिकॉर्डेड डिस्पोज ऑफ हो जाते थे और रीजंस रिकॉर्डेड डिस्पोज ऑफ होने के बाद जो ऑर्डर पास होता था असेसिंग ऑफिसर का, उसके अगेंस्ट में असेसीज रिट में चले जाते थे हाई कोर्ट के सामने, वैसे ही 148 कैपिटल ए डी के ऑर्डर के बाद अगर आपको लगता है कि देखिए रीओपनिंग बिल्कुल ही गलत हुई है तो आप रिट में जरूर जा सकते हैं। बट 264 की प्रोसीडिंग्स तो आई थिंक आफ्टर once the assessment order is passed, final assessment order is passed, तभी वो हो सकती है। सर अभी केस क्या हो रहा है जी, कि बैंक में पैन नंबर गलत चला गया हुआ है और वो असेसी को पता ही नहीं था बैंक में क्या पैन नंबर उसने दिया हुआ है जी, और कूलर जो रिटर्न फाइल कर रहा है दूसरे पैन नंबर पे, उसमें ऑडिट वगैरह सब कुछ फाइल हो रही है। जी, उसका रिप्लाई फाइल किया था कि आप हमारे इस नोटिस को 148A को दूसरे पैन नंबर पे ट्रांसफर कर दो। इसका PCIT को भी लिख के दिया हुआ है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब उसमें 148 आ गया उसी ओल्ड पैन पे जो रॉन्ग पैन है। जी। तो अब इस केस में ये तो अपीलेबल है नहीं सर 148AD का ऑर्डर। तो सर 148 कैपिटल ए क्लॉज डी का ऑर्डर अपीलेबल नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर मान लीजिए आपने पहले ही डिपार्टमेंट को ये दूसरे पैन की इंफॉर्मेशन दे दी थी और तब उसके बावजूद वो इंफॉर्मेशन होने के बावजूद डिपार्टमेंट अगर उसी पैन पे कार्रवाई कर रहा है, तो आपके पास जो मेरे हिसाब से अभी अवेलेबल ऑप्शन है वो 148 कैपिटल ए क्लॉज डी के ऑर्डर के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको रीअसेसमेंट का ऑर्डर फाइनली पास हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 264 की प्रोसीडिंग्स बिफोर PCIT कर सकते हैं या फिर अपील में जा सकते हैं बिफोर नेशनल फेसलेस अपील सेंटर। सर प्रॉब्लम यह है कि जो रॉन्ग पैन है उसका तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और उस पर रिटर्न भी नहीं फाइल कर सकते 148 की।
जी प्रोसीडिंग तो एक्स पार्टी हो जानी है। सर, वो तो आपको जो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर है उनको लिखकर ही देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए ई फाइल नहीं कर सकते तो आप फिजिकल फॉर्म में मेरे हिसाब से आप रिटर्न बनाकर और सबमिट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से नील की रिटर्न ही होगी, तो आप नील हाँ, की रिटर्न ही बना के नील की आप return फाइल कर दीजिए और उसमें ये लिख दीजिए कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी आर नॉट एबल टू फाइल द रिटर्न ऑनलाइन एंड सिंस वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू फाइल इट थ्रू ऑफलाइन चैनल। थैंक यू सर। ओके, चलिए, एनीवेज लेट अस गो फॉरवर्ड। कुछ और भी क्वेरीज हैं बट आई थिंक मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर अपन एक साथ क्वेरीज को डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द इश्यूज इसमें ही सॉल्व हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट जो अपन ने डिस्कस करा वो था जो भी एडिशंस विच आर पॉसिबल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग। सो जो पहले अभी मैंने दो चीजें डिस्कस करी वो थी कि कैसे जुरिस्डिक्शन अज्यूम हो सकता है एंड क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू लॉ। फिर उसके बाद अज्यूम कर लेता है जुरिस्डिक्शन जब असेसिंग ऑफिसर, तो उसके बाद जब वो नोटिस इशू करता है तो नोटिस इशू करने के टाइम पे क्या कार्रवाई असेसिंग ऑफिसर को करनी है। अब थर्ड चीज आती है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्या एडिशंस वो कर सकता है और क्या चेंजेस हैं बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू रेजीम, वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। नाउ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ओल्ड रेजीम थी, जो पहले का सेक्शन 148 था, और उस सेक्शन 148 को आप पढ़ेंगे तो इसमें ये लिख रखा था कि assessing officer has reason to believe that income chargeable to tax has escaped assessment for any assessment year. He may subject to provisions of section 148 to 153 assess or reassess such income. And also, ये and also पे मैंने काफी emphasize करना चाह रहा हूँ मैं, and also any other income chargeable to tax which has escaped assessment and which comes to the notice subsequently in the course of proceedings under this section. Now let me explain this by way of an example. For example, अगर मान लीजिए एक असेसी ने कोई अपना घर बेचा और उसने घर बेचने के बाद एक नए घर में इन्वेस्ट कर दिया, एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया, पर उसने रिटर्न फॉर एग्जांपल फाइल नहीं करी, और रिटर्न फाइल नहीं करी तो सब रजिस्ट्रार से जब असेसिंग ऑफिसर के पास उस असेसी की इंफॉर्मेशन पहुंची तो असेसिंग ऑफिसर को पता लगा कि इस पर्टिकुलर असेसी ने ये अपना घर बेचा है, वो घर बेचने के बेचा है और इसने अपना जो सेल कैपिटल गेन है या कुछ भी डिस्क्लोजर अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में नहीं करा, और हो सकता है इसने रिटर्न ही फाइल नहीं करी है। तो असेसिंग ऑफिसर रीजन रिकॉर्ड करता है, मैं अभी ओल्ड रेजीम की बात कर रहा हूँ, रीजन रिकॉर्ड करता है, रीजन रिकॉर्ड करने के बाद सारी कार्रवाई चालू करता है, और जब वो कार्रवाई करता है चालू, तब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर उस असेसी का बैंक अकाउंट भी मंगवाता है, और उस बैंक अकाउंट में असेसिंग ऑफिसर को पता लगता है कि इस असेसी ने तो 20 लाख रुपए कैश भी डिपॉजिट करवा रखा है। सो लेट मी अगेन कम बैक टू द फैक्चुअल पोजीशन कि जो रीओपनिंग हुआ था वो तो असेसिंग ऑफिसर ने करा था कि देखिए इन्होंने असेसी ने घर बेचा है और घर से जो भी कैपिटल गेन अराइज होता है या जो भी डिस्क्लोजर करना था वो इन्होंने नहीं करा अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में, सो असेसिंग ऑफिसर ने उसका केस रीओपन कर दिया। जब रीओपन की कार्रवाई चालू हुई तो असेसिंग ऑफिसर ने बैंक स्टेटमेंट भी मंगवाया और बैंक स्टेटमेंट में पता लगा कि 20 लाख रुपए कैश भी डिपॉजिटेड है, बट असेसी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स आकर असेसिंग ऑफिसर को कहता है कि देखिए ये जो मैंने घर बेचा था मैंने तो इसका एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया, तो बेसिकली कोई भी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है ही नहीं, इस वजह से जो आपने रीओपनिंग करी है ये गलत करी है। तो जो पुराने लॉ में, बट अब असेसिंग ऑफिसर ने ये भी देख लिया कि देखिए 20 लाख रुपए कैश डिपॉजिट हुआ है, तो पुराने लॉ में असेसिंग ऑफिसर इस 20 लाख रुपए पे एडिशन नहीं कर सकता था। वो क्यों नहीं कर सकता था? वो तभी कर सकता था एडिशन जब जिस बेसिस पे रीओपन हुआ है, अगर उस बेसिस से जो इनकम अराइज हो रही है अगर उसका एडिशन हो सकता था, तभी अगर कोई और सब्सिक्वेंट इन द रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स अगर कोई इश्यूज इमर्ज होते थे तभी उसका एडिशन हो सकता था। सो इस केस में अगर वो सेल ऑफ हाउस का असेसिंग ऑफिसर एडिशन करता तभी वो
जो कैश डिपॉजिट का जो उसने ऑब्जर्व करा है इन द बैंक स्टेटमेंट, वो 20 लाख रुपए का तभी एडिशन कर सकता था जब ऑन वन हैंड ही मेक्स एडिशन ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ हाउस। बट अगर मान लीजिए सेल ऑफ हाउस का कोई एडिशन नहीं करा, बिकॉज असेसिंग ऑफिसर को सब्सिक्वेंटली पता लगा कि देखिए असेसी ने तो इसका एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया है, तो कोई भी इनकम है ही नहीं, तो इन दैट सिनेरियो कैश डिपॉजिट का भी एडिशन नहीं हो सकता था। ये इस वजह से था क्योंकि जब वर्डिंग्स पढ़े अपन सेक्शन 147 की, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि असेसिंग ऑफिसर कैन असेस और रीअसेस सच इनकम, मतलब सच इनकम कौन सी, इनकम अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ हाउस and also any other income chargeable to tax which has escaped assessment and which comes to the notice of the assessing officer during the course of proceedings under section 147। तो and also कौन सी इनकम, वो इनकम जो कि 20 लाख रुपए कैश डिपॉजिट वाली है, वो वाली इनकम। तो जब पहली वाली इनकम नहीं एडिशन हो सकती थी, तो दूसरी वाली इनकम भी एडिशन नहीं हो सकती थी। और अगर पहला एडिशन हो सकता था जिसके बेसिस पे रीओपन हो रहा है, तो फिर तो कोई और भी इनकम का वो एडिशन कर सकता था अंडर द ओल्ड रेजिम। और ये जेट एयरवेज बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन और रैनबैक्सी दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन था, जिसमें कह रखा है कि अगर अपन इस एग्जाम्पल में बात करें कि अगर सेल ऑफ हाउस का कोई एडिशन नहीं है, तो फिर कैश डिपॉजिट का भी कोई एडिशन नहीं हो सकता। सेल ऑफ हाउस का अगर एडिशन है तो ही कैश डिपॉजिट का एडिशन हो सकता है। सो कई बार ऐसा होता था कि नॉर्मल स्क्रूटनी असेसमेंट रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स में बहुत सारे केसेस ऐसे आते थे कि जो रीओपन गलत तौर पे हो गया और फिर असेसिंग ऑफिसर समझ जाता था कि देखिए रीओपन का कोई केस नहीं बनता, बट असेसिंग ऑफिसर को ड्यूरिंग रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिल जाते थे जिससे वो एडिशन करना चाहता था, बट वो सारे एडिशंस इन द अपीलेट प्रोसीडिंग्स डिलीट हो जाते थे, स्टेटिंग कि ये एंड ऑल्सो वाली चीज इंपॉर्टेंट है। बट ये वाला जो पूरा सेक्शन है, ये पूरा जैसे मैंने कहा कि रिवैम्प हो गया है, तो अब नए लॉ में ये वाला पूरा सेक्शन हटा दिया गया है। ये वाला इस तरह का एंड ऑल्सो वाला जो पूरा क्लॉज है वो पूरा हटा दिया गया है और एक एक्सप्लेनेशन इशू कर दिया है। और उस एक्सप्लेनेशन में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि जिसके बेसिस पे रीओपन हुआ है वो पहले एडिशन हो, तभी सब्सिक्वेंट असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में अगर कोई नई चीज सामने आ रही है तो उसका एडिशन हो सकता है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। सो नए लॉ में बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अगर मान लीजिए वापस से यही केस रीओपन होता है और अगर सेल ऑफ हाउस का कोई एडिशन नहीं होता है, तो असेसिंग ऑफिसर कैन स्टिल गो अहेड एंड मेक द एडिशन ऑन अकाउंट ऑफ कैश डिपॉजिट। उसको कोई वापस से रीओपन करने की ना जरूरत रहेगी, वो उसी सेम प्रोसीडिंग्स में 20 लाख रुपीस का एडिशन असेसी के हैंड्स में कर सकता है, चाहे अल्टीमेटली सेल ऑफ हाउस का कोई भी एडिशन नहीं हुआ हो। और इसमें ये भी कह रखा है क्योंकि जैसा मैंने डिस्कस करा कि नोटिस 148 का इशू होता है, 148 के इशू होने से पहले 148 कैपिटल ए की भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो वो कैपिटल ए की प्रोसीडिंग्स चूंकि इस एग्जांपल में सेल ऑफ हाउस के लिए ही हुई है, तो चाहे वो सेल ऑफ हाउस अल्टीमेटली उसके अगेंस्ट में कोई एडिशन नहीं हुआ हो, तो भी वो कैश डिपॉजिट का कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि 148 कैपिटल ए में शो कॉज नोटिस कैश डिपॉजिट का नहीं दिया गया था। सो 148 की प्रोसीडिंग्स अगर कैश डिपॉजिट ऑफ 20 लाख के रिस्पेक्ट में नहीं भी हुई है, देन ऑल्सो अंडर द न्यू रेजिम इस पे एडिशंस हो सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है और इस वजह से जो स्कोप है ऑफ रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स ये काफी बढ़ गया है। और अगर चाहे एट द इनिशियल स्टेज चाहे कोई सी भी इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट असेसिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स उसके पास पूरा स्कोप है कि वो कोई सी भी इनकम का एडिशन कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट जिस बेसिस पे रीओपन हुआ है उसी का ही एडिशन नहीं हुआ हो, तब भी उसे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी इनकम का एडिशन कर सकता है। सो दिस इज वेरी मच फेवरिंग द असेसिंग ऑफिसर। और इस वजह से जो ये दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन है, रैनबैक्सी एंड बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन है जेट एयरवेज, एंड इनफैक्ट काफी लोगों को पता होगा जयपुर ट्राइब्यूनल भी
ये सारे डिसीजंस को फॉलो करता आ रहा है काफी टाइम से, तो ये सारे अब केस लॉस रिडंडेंट हो गए हैं अंडर द न्यू रेजिम। देन एडिशंस की जब मैं बात करूं तो एडिशंस में एक प्रोविजन ये भी था कि एक थर्ड प्रोविजन था ऑफ सेक्शन 148, जो पुराना सेक्शन 148 था, उसमें ये कह रखा था कि अगर कोई भी सब्जेक्ट मैटर है जो कि अपील या रेफरेंस या रिवीजन में है, तो उसका वापस से एडिशन नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर ने नॉर्मल स्क्रूटनी असेसमेंट में कोई सपोज सेक्शन 14A का एडिशन करा, और सेक्शन 14A के एडिशन की कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, और उस कैलकुलेशन से उसने 1 लाख रुपए का डिसअलाउंस को कैलकुलेट करा और इनकम में जोड़ दिया, और उस इनकम में जो भी एडिशंस हुआ उसके तहत असेसी जो है वो सीआईटी अपील के सामने अपील में है, तो वापस से असेसिंग ऑफिसर 14A वाला इशू नहीं रेज कर सकता इन रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स। ये इसलिए क्योंकि सीआईटी अपील के पास ऑलरेडी जो मैटर हुआ है, और वो असेसिंग ऑफिसर ये नहीं कह सकता कि ये जो 1 लाख रुपए का जो मैंने एडिशन करा है वो गलत कैलकुलेशन कर दी थी, और ये तो कैलकुलेट 1.5 लाख रुपए होना चाहिए अंडर सेक्शन 14A, तो वो ये कहकर वापस से केस को रीओपन नहीं कर सकता अंडर द ओल्ड रेजिम, क्योंकि जो ये 1 लाख रुपए है इसके अगेंस्ट में ऑलरेडी असेसी अपील में है बिफोर सीआईटी अपील, तो इस वजह से रीओपन नहीं हो सकता। बट ये वाला पूरा जो प्रोविजो है ये पूरा खत्म कर दिया है अंडर द न्यू रेजिम। तो इसमें कुछ लोगों का मानना है कि अब देखिए चूंकि ये एक्सप्रेसली हटा दिया गया है, तो फिर भी अगर कोई मैटर अपील में हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये वापस से असेसिंग ऑफिसर ये चेंजेस ये एडिशंस कर सकता है। बट मेरा पर्सनल ये मानना है कि इवन इफ ये प्रोविजो हटा दिया गया हो तब भी वापस से उसी इशू पे असेसिंग ऑफिसर वापस से केस रीओपन नहीं कर सकता। उसके 2-3 रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि चेंज ऑफ ओपिनियन की वजह से कोई भी रीओपनिंग अंडर द न्यू रेजिम भी नहीं हो सकती। सो वो चेंज ऑफ ओपिनियन, क्योंकि एक बार अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो इस एग्जाम्पल में जो कैलकुलेशन 14A की असेसिंग ऑफिसर ने करी, वो अपना माइंड अप्लाई करने के बाद 1 लाख रुपए करी, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तो वो वापस से अपना ओपिनियन चेंज नहीं कर सकता, और वो ये नहीं कह सकता कि ये 1 लाख रुपए की कैलकुलेशन उसने गलत करी और ये कैलकुलेशन 1.5 लाख रुपए की होनी चाहिए, 1.5 लाख रुपए का डिसअलाउंस होना चाहिए। सो एक तो चेंज ऑफ ओपिनियन नहीं हो सकता, एंड ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट एक थ्योरी ऑफ मर्जर भी एक थ्योरी होती है अंडर द इनकम टैक्स जूरिस्प्रूडेंस या एनी अदर जूरिस्प्रूडेंस, कि अगर कोई लोअर अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास करा है तो दैट ऑर्डर मर्जेस विद द ऑर्डर ऑफ द हायर अथॉरिटी। तो अगर असेसिंग ऑफिसर ने 14A का कोई डिसअलाउंस करा है और उसके बेसिस पे कोई ऑर्डर पास करा है और उसकी कोई अपील पेंडिंग है या अपील में है वो केस, तो the order of the assessing officer will merge with the order of the CIT appeal। तो assessing officer के पास वो पावर उसी चीज को वापस रेकअप करने की उसके पास पावर नहीं होगी। सो ये चाहे थर्ड प्रोविजन टू सेक्शन 147 हट गया हो, देन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मी माई बिलीफ इज कि जो भी इश्यूज अपील में ऑलरेडी चल रहे हैं उस पे वो रीओपन नहीं कर सकते केसेस को। देन काफी इश्यूज ऐसे भी आए थे अंडर द ओल्ड रेजिम की सेक्शन 148 में रीओपन हुआ, और फिर स्क्रूटनी असेसमेंट नॉर्मल असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चालू हो गया, बट असेसिंग ऑफिसर ने 143(2) का नोटिस नहीं दिया, और उस वजह से काफी सारे जो रीओपनिंग है वो चैलेंज हुए और वो केसेस क्वैश हो गए थे, रीओपनिंग क्वैश हो गई थी। तो वो पर्टिकुलर लॉ अभी भी एप्लीकेबल है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब 148A की कार्रवाई हो जाती है अंडर द न्यू रेजिम, उसके बाद जब आपको नोटिस इशू होता है, नोटिस इशू होने के बाद जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करने के बाद असेसिंग ऑफिसर को 143(2) का नोटिस देना जरूरी है।
और 143(2) का नोटिस देने के बाद ही जो असेसिंग ऑफिसर है वो नॉर्मल स्क्रूटनी असेसमेंट असेसी के अगेंस्ट चालू कर सकता है। अगर मान लीजिए नहीं है तो ये बिल्कुल हमारे को चैलेंज करना चाहिए। तो टू दैट एक्सटेंट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू रेजिम, ये हमारे को ध्यान में रखने की जरूरत है। नाउ वी कम टू टाइम लिमिट। तो अभी हमने 2-3 इश्यूज डिस्कस करे कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्या एडिशंस हो सकते हैं। अब मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहूंगा अंडर द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू अराइज हो रहे हैं। और आप सभी को पता होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीजन पास करा जिसमें जो भी नोटिसेस 1 अप्रैल 2021 के बाद इशू हुए थे उनको वो सही उन्होंने करार दिया। एंड देन उन्होंने कहा कि 149 के जो टाइम लिमिट्स हैं उस वो एप्लीकेबल रहेंगे। और फिर उसके बाद एक इंस्ट्रक्शंस भी अभी कुछ दिन पहले सीबीडीटी ने इशू करे, एंड उसमें भी कुछ टाइमलाइंस के कंफ्यूजन है, तो वो सारी चीजें अपन अभी डिस्कस करेंगे। Now, as far as timelines are concerned for reopening, जो old regime में section 149 में timelines थे कि 149 में कह रखा था कि कौन कौन से केसेस रीओपन हो सकते हैं, वही सेक्शन को अब पूरा रिवैम्प कर दिया है अंडर द न्यू रेजिम। अब मैं अगर ओल्ड रेजिम की बात करूं तो अंडर द ओल्ड रेजिम जो रीओपन हो सकते थे केसेस वो 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर ही हो सकते थे। 4 साल के बाद कोई भी केस रीओपन नहीं हो सकता था, ये एक जनरल टाइम लिमिट थी। बट अगर मान लीजिए इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 1 लाख रुपए से ज्यादा था तो ये 4 साल की टाइम लिमिट 6 साल की हुआ करती थी। सो नॉर्मल कोर्स में 1 लाख रुपए से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 1 लाख रुपए से ऊपर ही थे, तो हमारे को यही था कि जो भी रीओपन हो सकता है वो 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर हो सकता है। सो 6 साल तक केस रीओपन हो सकता था। इन केस ऑफ फॉरेन असेट्स, फॉरेन असेट से अगर कोई इनकम है या कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इन एनी फॉरेन असेट, तो जो टाइम लिमिट इंट्रोड्यूस हुई थी वो 16 साल की हुई थी। सो अगर नॉर्मल कोर्स में इंडियन असेट्स ही है, इंडिया से ही लेना देना है, तो 6 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तक केस रीओपन हो सकता था। अगर कोई फॉरेन असेट्स का कोई इशू था तो 16 साल तक फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर केस रीओपन हो सकता था। These were the timelines as per the old 149, with the 149 which was existing under the old regime. Under the new regime, ये timeline जो Finance Act 2021 से 1 अप्रैल 2021 से इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें टाइमलाइंस को कम कर दिया गया और उसमें टाइमलाइंस 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर जनरल कर दी गई। तो जो पहले टाइमलाइन 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर थी, वो अब 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर हो गई। और पर उसमें कुछ कंडीशंस लगा दी कि अगर 50 लाख रुपए से ऊपर है, अगर कोई एस्केप्ड इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अगर 50 लाख या उससे ऊपर है, तो जो 3 साल की टाइम लिमिट है वो 10 साल की कर दी गई। ये एक इम्पोर्टेंट है। तो कई लोगों को जब ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था तो लगा कि 6 साल से अब टाइम लिमिट कम हो गई, 3 साल हो गई और असेसीज बहुत खुश हो गए। बट अल्टीमेटली ये टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया जो उन बड़े केसेस में जिसमें 50 लाख या उससे ऊपर का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है, तो टाइम लिमिट 10 साल की कर दी गई। और इसमें जो फॉरेन असेट्स का स्पेसिफिकली 16 साल है, वो फॉरेन असेट्स का कोई सेपरेट कैटेगरी नहीं है। सो अब जो नई रेजिम में केस रीओपन हो सकता है वो नॉर्मल कोर्स में 3 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर केस रीओपन हो सकता है। बट अगर किसी भी साल में 50 लाख से ऊपर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है, और मैं इस चीज को और डिटेल में लूंगा, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है तो केस 10 साल तक ये जा सकता है। सो बेसिकली हम ये ना समझें कि टाइम लिमिट्स रिड्यूस हो गई, इनफैक्ट टाइम लिमिट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं।
नाउ अब ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या टाइम लिमिट्स है। जब अपन देखेंगे ये उनके लिए है जो नोटिसेस आफ्टर 1 अप्रैल 2021 इशू 1 अप्रैल 2021 इशू हो सकते हैं जिन सालों के लिए। सो पहला मैं ओल्ड रेजीम से स्टार्ट करता हूँ। ओल्ड रेजीम में अगर 1 अप्रैल 2021 के बाद मेरे को नोटिस हुआ है, एंड आई एम नॉट डिस्कसिंग द एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट्स विच हैपेंड ड्यू टू कोविड, वो सब अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा कुछ ब्रीफली। बट अगर कोविड की टाइमलाइंस के एक्सटेंशन को अभी अपन एक बार इग्नोर करें और सिर्फ नए लॉ को जो इंट्रोड्यूस हुआ है 1 अप्रैल 2021 से देखें, तो 1 अप्रैल 2021 के बाद जो नोटिसेस इशू हो सकते थे, अगर मैं ओल्ड रेजीम की बात करूं तो असेसमेंट ईयर 15-16 या उसके बाद ही हो सकते थे, बिकॉज 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इंट्रोड्यूस हो सकते थे, इशू हो सकते थे। अब अगर मैं नए रेजीम की बात करूं तो नए रेजीम में मैं नीचे से शुरुआत करता हूं। असेसमेंट ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 20-21, 19-20 और 18-19, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो 3 साल के थ्रेशोल्ड में आ रहे हैं, तो ये 3 साल में तो केस रीओपन हो सकता है। और ये सेक्शन 1 जो नया सेक्शन 149 है, 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के तहत ये केसेस रीओपन हो सकते हैं। अगर मैं 17-18 या उसके बियॉन्ड जाता हूँ, असेसमेंट ईयर 17-18 या उसके बियॉन्ड जाता हूँ, तो फिर उस केस में असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दैट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इज ₹50 lakhs और मोर, एंड ये इंडिविजुअल ईयर वाइज देखा जाना चाहिए। सो अगर असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन 16-17 असेसमेंट ईयर की है, तो और अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है कि 60 लाख रुपए की ऐसी इनकम है विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट, देन ही कैन गो अहेड एंड रीओपन द केस ऑफ द असेसी। और इसमें असेसिंग ऑफिसर को इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के बाद एक स्टेप और आगे जाना था, उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए विच सजेस्ट दैट जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ एनी असेट या एक्सपेंडिचर या एंट्री और एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये काफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एज ऑफ नाउ अपन यही समझें कि अगर 50 लाख से ऊपर अगर कोई इंफॉर्मेशन है असेसिंग ऑफिसर के पास, तो ही वो 3 साल के बाद जा सकता है। एंड ये 50 लाख की जो लिमिट है वो पर ईयर वाइज देखी जानी चाहिए। दिस वाज द सेक्शन व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2021। अब एक सवाल ये भी आ सकता है कि देखिए जो 50 लाख से ऊपर अगर असेसमेंट ईयर 14-15 या 13-14 या 12-13 का कोई केस हो, तो भी क्या वो रीओपन हो सकता है, क्योंकि लिमिट तो 50 लाख रुपए है या 50 लाख रुपए से ऊपर और 10 साल तक की है। तो क्योंकि अगर मान लीजिए 14-15 असेसमेंट ईयर में किसी असेसी का 60 लाख रुपए की इनकम है विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट, तो क्या वो रीओपन हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके लिए सेक्शन 149(1) में एक प्रोविजो इंट्रोड्यूस करा गया, और उस प्रोविजो के तहत ये कहा गया कि जो पुराने लॉ में अगर कोई केस रीओपन नहीं हो सकता था, वो नए लॉ में भी रीओपन नहीं हो सकता। सो इसका मतलब अगर मैं 14-15, बिकॉज 15-16 के बाद तो आई होप सबको समझ में आ ही गया होगा, अगर मैं 14-15 की बात करूं, सो अगर कोई 14-15 असेसमेंट ईयर का नोटिस है जो कि 1 अप्रैल 2021 के बाद आया है, तो उस केस में हमारे को ये देखना है कि क्या ये रीओपन हो सकता है। अगर 60 लाख रुपए की इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है, तो हाँ बिल्कुल रीओपन हो सकता है, और ये 10 विद इन द टाइमलाइन ऑफ 10 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है। ये तो असेसमेंट ईयर 14-15 मतलब 31 मार्च 2015 से टाइमलाइन 10 साल की देखी जाएगी, तो 1 अप्रैल 2021 के बाद ये नोटिस इशू हो सकता है। बट क्योंकि ये फिर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ हो जाती, क्योंकि अगर ये नया पुराना लॉ होता तो उसमें 14-15 असेसमेंट ईयर को रीओपन नहीं करा जा सकता। इस वजह से
अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं हो तो इस वजह से ही जब फाइनेंस एक्ट 2021 आया तो उन्होंने 149 सबसेक्शन 1 में एक प्रोविजो भी इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके तहत, उस प्रोविजो के तहत ये है कि अगर मान लीजिए कोई पुराने लॉ में अगर कोई रीओपन नहीं हो सकता था, क्योंकि 14-15 पुराने लॉ में नहीं हो सकता रीओपन, तो फिर वो नए लॉ में भी नहीं हो सकता, चाहे वो 10 साल की टाइम लिमिट में फॉल करता हो तब भी वो नहीं हो सकता। सो इसका मतलब अगर 1 अप्रैल 2021 के बाद आपको कोई असेसमेंट ईयर 13-14 या असेसमेंट ईयर 14-15 का कोई नोटिस आया है, चाहे उस पर्टिकुलर ईयर में 50 लाख रुपए से ही इनकम क्यों ना ज्यादा एस्केपिंग असेसमेंट है, देन इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन और वो 1 अप्रैल 2021 के बाद वो नोटिस इशू हो ही नहीं सकता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन वाले सालों में अगर कोई भी नोटिस इशू हुए हैं तो हमारे को वो चैलेंज करने चाहिए। सिमिलर मैनर में 1 अप्रैल 2022 का अपन देखते हैं। 1 अप्रैल 2022 में सेक्शन 149 में फाइनेंस एक्ट 2022 से एक और नया अमेंडमेंट आ गया और सबसेक्शन 1A इंट्रोड्यूस हो गया। और सबसेक्शन 1A में अभी पूरा डिटेल में नहीं जा रहा। सबसेक्शन 1A में ये कहा गया कि अगर इसको थोड़ा डाइल्यूट कर दिया गया, जो फाइनेंस एक्ट 2021 में जो सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था सबसेक्शन 1 और सेक्शन 149, उसमें तो 50 लाख रुपए ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस देखा जाना था कि अगर एक पर्टिकुलर ईयर में 50 लाख से अगर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 50 लाख या उससे ज्यादा है फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, तो उसी साल का रीओपन हो सकता है। बट फाइनेंस एक्ट 2022 से सबसेक्शन 1A इंट्रोड्यूस हुआ और उसमें कहा गया कि अगर स्टैंड अलोन बेसिस या कंबाइंड बेसिस, अगर दोनों को ध्यान में रखते हुए एक या ज्यादा साल है और उसमें 50 लाख रुपए से ऊपर अगर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है तो वो सारे साल रीओपन हो सकते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए अगर हम नए लॉ में, और ये सारा अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2022 से आया है और ये सबसेक्शन 1A इंट्रोड्यूस हुआ है टू सेक्शन 149, तो अगर मान लीजिए पुराना अगर फाइनेंस एक्ट 2021 का जो 149 पहले का लॉ था, अगर अपन उसमें देखें और मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखूं कि अगर असेसमेंट ये 17-18 और 18-19 में 17-18 में कोई मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी ने किसी मनी लेंडर के यहाँ सर्च करी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से को पता लगा कि किसी मिस्टर ए ने मनी लेंडिंग करी है उस ब्रोकर के तहत और 30 लाख रुपए की मनी लेंडिंग करी है फॉर असेसमेंट ईयर 17-18, तो और 18-19 में जो मनी लेंडिंग करी है वो करी है 40 लाख रुपए की कैश में करी है, तो असेसिंग ऑफिसर अगर 149(1) की बात करूं तो रीओपन नहीं कर सकता बिकॉज ये 50 लाख रुपए से कम था। बट अब जब फाइनेंस एक्ट 2022 से जब सबसेक्शन 1A इंट्रोड्यूस हुआ तो ये वापस से दोनों साल रीओपन हो सकते हैं बिकॉज सबसेक्शन 1A के हिसाब से 17-18 और 18-19 को दोनों को कंबाइंड मैनर में देखा जाएगा बिकॉज ये एक ही पर्टिकुलर सर्च और एक ही पर्टिकुलर ब्रोकर के थ्रू हुई है। तो उस केस में असेसमेंट ईयर 17-18 और 18-19 को दोनों को कंबाइंड मैनर में देखा जाएगा, और चूंकि असेसमेंट ईयर 17-18 में 30 लाख रुपए है और असेसमेंट ईयर 18-19 में 40 लाख रुपए है, और अगर दोनों को ऐड करें तो ये 50 लाख से ऊपर चला जाता है, तो फिर उस केस में दोनों ही साल रीओपन हो सकते हैं। सो बोथ असेसमेंट ईयर्स 17-18 as well as 18-19 can be reopened by the assessing officer taking recourse to subsection 1A of section 149. Of course, there are lot of complexities involved in this, but अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि ये दोनों साल भी रीओपन हो सकते हैं। सो जो एम्फोसिस मैं देने चाह रहा हूँ कि फाइनेंस एक्ट 2021 में जो 1 अप्रैल 2021 को जो लॉ आया था उसके बाद वापस से वो लॉ और डाइल्यूट कर दिया, क्योंकि पहले जो लॉ आया था फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो लॉ एप्लीकेबल था उसमें
50 लाख से ऊपर की जो लिमिट है वो पर ईयर वाइज देखी जानी चाहिए थी, बट अब सब्सिक्वेंट टू फाइनेंस एक्ट 2022 के अमेंडमेंट के बाद जो सबसेक्शन 1A इंट्रोड्यूस हुआ है सेक्शन 149 में, तो उसमें 50 लाख रुपए से अगर नीचे भी है, बट अगर वो एक ही इवेंट से या ओकेजन से रिलेटेड है, तो उस केस में 50 लाख रुपए को सारे अमाउंट्स को क्लब करके देखा जाएगा, कंबाइंड मैनर में देखा जाएगा, और कंबाइंड मैनर में देखने के बाद अगर हमारे को लगता है कि 50 लाख रुपए से ऊपर है तो वो सारे साल रीओपन हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसमें वही लॉ जो प्रोविजो है वो एप्लीकेबल रहेगा कि जो पुराने लॉ में रीओपन नहीं हो सकता था वो नए लॉ में भी रीओपन नहीं हो सकता। सो 1 अप्रैल 2022 के बाद असेसमेंट ईयर 15-16 या उससे पहले वाले सालों को किसी भी केस में रीओपनिंग नहीं हो सकती, उसके बाद ही रीओपन हो सकता है। तो ये हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ ही मैं पहले जो अभी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पास हुआ इन आशीष अग्रवाल केस, जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आशीष अग्रवाल का केस हुआ था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो रीओपन, क्योंकि जो इशू जो हुआ था वो ये हुआ था कि 1 अप्रैल 2021 के बाद भी डिपार्टमेंट ने नोटिसेस इशू कर दिए थे अंडर सेक्शन 148, और चूंकि उस समय सेकेंड वेव ऑफ कोविड थी तो उन्होंने टाइमलाइंस एक्सटेंड कर दी। तो जो भी नोटिसेस 31 मार्च 2021 को इशू होने चाहिए थे उन्होंने टाइमलाइंस एक्सटेंड कर दी बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, और वो 30 जून 2021 तक वो टाइमलाइंस को एक्सटेंड कर दिया। तो डिपार्टमेंट से गलती ये हुई कि 1 अप्रैल 2021 के बाद जो भी उन्होंने नोटिसेस इशू करे वो नए लॉ के तहत इशू करने चाहिए थे, और पर उन्होंने नए लॉ के जो भी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब था, जैसे 148A का प्रोसीजर, वो प्रोसीजर को कंप्लाई नहीं करा और नोटिसेस इशू कर दिए। लोग ऑल अक्रॉस इंडिया रिट में गए। सबसे पहला जो डिसीजन आया फेवरेबल टू द एसएससी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया, इवन राजस्थान हाईकोर्ट का भी डिसीजन फेवरेबल आया, और हाई कोर्ट्स ने ये कहा कि जो भी नोटिसेस 1 अप्रैल 2021 के बाद इशू हुए हैं, चूंकि ये नए लॉ के तहत इशू हुए हैं, तो 148A का प्रोसीजर डिपार्टमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए था, और चूंकि डिपार्टमेंट ने 148A का प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करा है, तो ये सारी प्रोसीडिंग्स को उन्होंने क्वैश कर दिया, इलीगल और वॉइड एब इनिशियो बताकर सारे नोटिसेस को क्वैश कर दिया। डिपार्टमेंट इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष अग्रवाल के केस में ये डिसाइड करा कि नहीं, जो नोटिसेस 1 अप्रैल 2021 के बाद इशू हुए हैं, हालांकि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने करा है, ये क्वैश करा है, वो बिल्कुल सही करा है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज अ वन टाइम मेजर ये जो भी नोटिसेस हैं, और चूंकि बहुत लॉस हो जाएगा रेवेन्यू को, तो जो भी डिपार्टमेंट ने करा है वो बिल्कुल सही करा है, और जो भी 148 में नोटिसेस इशू करे हैं दैट विल बी डीम्ड एज इफ वो शोकॉज नोटिस 148 कैपिटल ए में इशू हुए हैं। और ये आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत इन्होंने ये पास करा। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि वेदर ये सही डिसीजन पास हुआ या गलत डिसीजन पास हुआ। आफ्टर द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन आशीष अग्रवाल, जो भी प्रोसीडिंग्स 1 अप्रैल 2021 के बाद जो भी क्वैश हो गई थी हाईकोर्ट्स के द्वारा, वो सारी अब रिवाइव हो गई हैं। सो देयर कैन बी अ सिनेरियो कि मैं ऑलरेडी हाईकोर्ट में चला गया था और प्रोसीडिंग्स क्वैश हो गई थी, तो वो वापस से नोटिसेस रिवाइव हो जाएंगे, और हो सकता है मैं हाई कोर्ट गया ही नहीं उन नोटिसेस के अगेंस्ट, तो नॉर्मल कोर्स में जो स्क्रूटनी असेसमेंट पास होगा वो ऑर्डर पास हो जाएगा। बट ये ध्यान में हमारे को रखना है कि वो जो नोटिस 148 का 1 अप्रैल 2021 के बाद इशू हुआ है, इट विल बी डीम्ड एज इफ इट हैज बीन इशूड एज अ शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 148 कैपिटल ए अंडर द न्यू रेजिम। इसके बाद इसके तहत जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दिए, सीबीडीटी ने इंस्ट्रक्शंस जारी करे, और उस इंस्ट्रक्शंस में ये है कि 30 दिन फ्रॉम 4 मई, मतलब 4 जून तक जो असेसिंग ऑफिसर है उसको असेसी को सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ऑन द बेसिस ऑफ विच जो 148 के केसेस रीओपन हुए थे इन अप्रैल टू जून 2021,
और वो असेसी को 2 वीक का टाइम दिया जाएगा टू रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस एंड फिर सारी रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स चालू होंगी। तो ये हमारे को ध्यान रखना है कि अगर 1 अप्रैल 2021 से 30 जून के बाद नोटिस इशू हुए हैं तो ये सारी कार्रवाई अब हमारे को इस जून में, मई और जून में ये सारी कार्रवाई करनी पड़ेगी और सारी जो भी इशू है, जो भी रिप्लाई है टू द शो कॉज नोटिस वो देना पड़ेगा और उससे पहले असेसिंग ऑफिसर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू द असेसीज बाय 4th और 5th ऑफ मई और उसके बाद 2 वीक का टाइम दिया जाएगा असेसी को टू सबमिट द रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस। ये हमारे को ध्यान में रखना है। अब एक इसमें कंट्रोवर्सी ये भी हो गई जब उन्होंने इंस्ट्रक्शंस इशू करे गए तो इंस्ट्रक्शंस इशू में उन्होंने आपने देखा हो तो उन्होंने ये भी लिख दिया कि असेसमेंट ईयर 13-14 और 14-15 के केसेस भी रीओपन हो सकते हैं अगर 50 लाख से ऊपर अगर असेस्ड इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही गलत इंस्ट्रक्शंस इशू हुए हैं बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डिसीजन पास करा था तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम ये नोटिसेस को रिवाइव तो कर रहे हैं बट उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि पुराना लॉ ही एप्लीकेबल रहेगा। उन्होंने ये बिल्कुल कहा कि 1 अप्रैल 2021 के बाद नया लॉ ही एप्लीकेबल रहेगा, नए लॉ की टाइमलाइंस एप्लीकेबल रहेंगी। तो अगर मैं इंस्ट्रक्शंस में पढ़ता हूं कि असेसमेंट ईयर 13-14 और 14-15 का केस भी रीओपन हो सकता है अगर 50 लाख रुपए से ऊपर है, देन अकॉर्डिंग टू माय व्यू इट इज टोटली इनकरेक्ट बिकॉज जो हमने इनिशियली डिस्कस करा था, जो ये टाइमलाइंस डिस्कस करी थी उसमें 1 अप्रैल 2021 के बाद जब नया लॉ इंट्रोड्यूस हो गया है तो असेसमेंट ईयर 13-14 और 14-15 का केस तो रीओपन हो ही नहीं सकता। सो अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा केस है तो यू शुड प्रिफर either filing a writ before the High Court or even challenging these notices in the appellate proceedings and hopefully आने वाले टाइम में ये काफी लॉ क्लियर हो जाएगा बिकॉज बहुत सारे ऐसे नोटिसेस हैं जो असेसमेंट ईयर 13-14 और 14-15 के इशू हो गए हैं और अब वो इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा गया है कि असेसिंग ऑफिसर हैज राइट टू परस्यू दोज नोटिसेस। तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल बार्ड बाय लिमिटेशन है। असेसिंग ऑफिसर कैन नॉट गो टू असेसमेंट ईयर 13, 14, 14, 15 इन एनी केस आफ्टर 1 अप्रैल 2021। इसी के साथ ही एक और चीज जो इशू हुआ कि असेसमेंट ईयर 16, 17 और 17, 18 का भी उन्होंने कह दिया कि अगर 50 लाख रुपए से कम है तो 16, 17, 17, 18 भी हो सकता है। ये भी मेरे हिसाब से गलत है कि अगर 50 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट तभी 16, 17, 17, 18 हो सकता है। इसके अलावा 16, 17, 17, 18 या उससे पहले का नहीं हो सकता। ये भी हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। सो according to me the timelines which have been provided in the instructions are incorrect because Supreme Court said two things in its order. First is that whatever notices have been issued after 1st of April 2021 they will be deemed as if having been issued under 148 capital A clause B show cause notice. And secondly, Supreme Court also mentioned that whatever timelines are there as per the new law under section 149 they would be applicable. So अगर मैं timelines की बात करूं तो ये तो beyond the timelines हो जाते हैं. So to that extent my personal view is that जो instructions में timelines दी गई हैं ये to the extent of assessment year 13, 14, 14, 15 तो बिल्कुल ही रीओपन नहीं हो सकते। एंड अगर 50 लाख रुपए से ऊपर है तभी 16, 17 या 17, 18 असेसमेंट ईयर हो सकता है रीओपन, अदरवाइज वो भी नहीं हो सकता। तो ये हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। Now last 5 minutes, 5-10 minutes I will devote on the sanctioning authority. जब भी केसेस रीओपन होते हैं तो लॉ में प्रावधान है कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसे हायर अथॉरिटी से उसे सैंक्शन अप्रूवल लेना पड़ेगा। सैंक्शन अप्रूवल में इसमें डिस्कशन में ज्यादा नहीं जा रहा। दिस टेबल इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि अगर ओल्ड रेजिम होती और अगर 4 साल से ऊपर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 इयर्स जो अप्रूविंग अथॉरिटी होती है वो पीसीसीआईटी है और अगर और कोई केस है तो जीसीआईटी होगी।
इस नए रेजिम में अगर 3 साल से ऊपर है तो पीसीआईटी है, और अगर 3 साल से नीचे है तो पीसीआईटी, और 3 साल से ऊपर है तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जब लॉ आप देखेंगे तो इसमें 2 जगह अप्रूवल लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो नोटिस जब 148 का इशू होगा और 148 कैपिटल ए क्लॉज डी का जब ऑर्डर पास होगा तब भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, और शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले भी अप्रूवल असेसिंग ऑफिसर को लेना पड़ेगा। सो ये दोनों अप्रूवल हमारे को ध्यान में रखने चाहिए। एक जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अप्रूवल का जो लॉ है वो काफी लिटिगेटिव रहा इन अंडर द ओल्ड रेजिम। अगर मान लीजिए अप्रूवल प्रॉपर तरीके से अप्रूविंग अथॉरिटी ने नहीं दिया, या सिर्फ जल्दीबाजी में दे दिया, या बहुत सारे असेसीज को एक साथ दे दिया, तो इन सारे केसेस में अप्रूवल वर हेल्ड टू बी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, एंड इवन द रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स वर क्वैश्ड ऑन दैट अकाउंट। सो ये जो सेम लॉ अभी भी एप्लीकेबल हो सकता है, और हमारे को ये ध्यान में रखना चाहिए। सो जब भी हम 148 की चीजों को देखें तो हम ये अप्रूवल मैकेनिज्म जो है उस पर बहुत ध्यान दें, और ये ना समझें कि अप्रूवल तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा या सरकार में मिल ही जाता है। हमारे को एक एक चीज प्रॉपर अप्रूवल मैकेनिज्म को देखना चाहिए, एंड उस अगर प्रॉपर तरीके से नहीं है तो उसको भी चैलेंज करना चाहिए। एंड देयर हैव बीन केसेस दैट these have been challenged, and these have been held to be without approval, without application of mind, and the reassessment proceedings have been quashed by the courts. तो हमारे को अप्रूवल मैकेनिज्म को ध्यान में रखकर जो अप्रूविंग अथॉरिटी है वही अप्रूव करे, ये सब हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। देन सर्च एंड सर्वे, क्योंकि ये एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो अंडर द ओल्ड रेजिम जो सर्च और सर्वे के केसेस होते थे, स्पेशली सर्च के जो केसेस होते थे, सर्च के केसेस के जो असेसमेंट्स होते थे वो अंडर 153 कैपिटल ए होते थे। और अगर सर्च से रिलेटेड अगर कोई किसी और एसएससी के डॉक्यूमेंट्स मिल गए, सपोज सर्च मिस्टर ए के हुई और मिस्टर ए के पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल गए जो मिस्टर बी से रिलेटेड हैं, तो उस केस में मिस्टर बी का जो मिस्टर ए का तो जो असेसमेंट होता था वो 153 ए में होता था, और मिस्टर बी का जो असेसमेंट होता था वो 153 सी में होता था। बट अब जो नए लॉ में 153 ए और 153 ये सारे सेक्शंस को अबॉलिश कर दिया है, और जो भी अब असेसमेंट्स होंगे वो 147 से 151 के तहत ही होंगे। मतलब नॉर्मल रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो हुआ करती थी वही अब सर्च और सर्वे में भी रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स हो गई। जो भी 153 ए और 153 सी की प्रोसीडिंग्स हैं वो सब सबस्यूम हो गई इन 147 प्रोसीडिंग्स। तो ये हमारे को ध्यान में रखना है, नॉर्मल रीअसेसमेंट की तरह ही ये सारी प्रोसीडिंग्स होगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो अदर देन सर्च एंड सर्वे की प्रोसीडिंग्स हैं उसमें डिफरेंट स्टेजेस पे असेसिंग ऑफिसर को अप्रूवल्स लेने होते हैं। जैसे मैंने वो टेबल में दिखाया कि अपनी हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेने होते हैं, बट इन केस ऑफ सर्च एंड सर्वे प्रोसीडिंग्स ये अप्रूवल्स असेसिंग ऑफिसर को लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे को ध्यान में रखना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो पुराने और नए लॉ में जो चेंज हो गया है, चूंकि पहले जब किसी, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि मिस्टर ए के यहाँ सर्च हुई और मिस्टर बी के डॉक्यूमेंट्स भी मिस्टर ए के सर्च में मिल गए, तो 153 सी की प्रोसीडिंग्स मिस्टर बी के यहाँ होनी चाहिए थी। बट अब ये सब सब्ज्यूम हो गया है। तो पहले जो एक लॉ डेवलप हुआ कि 147 की प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती अगर 153 सी की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो वो सारा लॉ अब चेंज हो गया है। Everything has to be done as per section 147 only. So these were the issues which primarily I wanted to discuss. अब जो भी queries हैं, because we have 15 minutes left with us, so हम कुछ जो भी queries हैं वो ले सकते हैं।
एंड किसी और का कोई अगर और इंटरप्रिटेशन है तो दैट कैन ऑल्सो बी डिस्कस, बिकॉज ये जो लॉ है ये काफी नया इंट्रोड्यूस हुआ है. लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशंस आर कमिंग ईच एंड एवरी डे, सो दैट वी कैन डिस्कस. We have last 10-15 minutes with us. So thank you so much, sir, for sharing your knowledge with us. It is, I'm sure this webinar is going to be very important for all of us. So Abhinav Kumar ji sir, इनकी एक क्वेरी थी, इन्होंने चैट में भी लिखी है. और अभिनव जी आप अनम्यूट करके बता सकते हैं आपकी क्वेरी. हेलो. यस सर. हेलो. Yes sir. यस सर. ये सर मैं ये पूछा था सर कि हमने जो रेट फाइल की हुई थी सर जी. और उसमें वो 148 क्रैश हो गए थे. सर कौन से साल की थी? सर 15, 16, 16, 17, 17, 18. जी सर. और उनमें प्रॉब्लम क्या है सर कि डिपार्टमेंट को हमने ऑर्डर भी दे दिए थे, वो अभी भी प्रोसीडिंग ओपन है. जी सर. तो अब जो 148A के नोटिस आएंगे सर वो जी. सेपरेट टैब में होंगे या उसी में वो दोबारा से रीओपन हो जाएगा केस? सर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये सबके साथ दिक्कत आ रही है सर. मेरा मानना ये है कि जो नोटिसेस क्वैश भी हो गए थे वो वापस रिवाइव हो गए हैं आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन. तो उसी प्रोसीडिंग्स में आगे चालू हो जाएंगे और असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट ये 15, 16, 16, 17, 17, 18 के जो आपके 3 साल के केसेस हैं उसके जो भी इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे उन्होंने आपका केस रीओपन करा था वो सारा आपको देना पड़ेगा. और वो बेसिकली 4-5 जून के अंदर अंदर वो देना पड़ेगा और 2 वीक के अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई देना पड़ेगा. सो सेम प्रोसीडिंग्स ही चालू रहेंगी. वो टैब हो सकता है सर, ऑनलाइन टैब कोई नया क्रिएट कर दें टेम्परली, बट as far as proceedings are concerned they will be the same proceedings which will happen. एंड क्योंकि वो जो नोटिसेस जो हाई कोर्ट्स ने क्वैश कर दिए हैं वो बेसिकली अब वापस रिवाइव हो गए हैं सब्सिक्वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन. तो सर And those notices will be deemed as if they have been issued under clause B of section 148 capital A, that is the show cause notice. सर ये जो 15, 16, 16, 17 के केस हैं इनमें टैक्स इफेक्ट तो सॉरी टोटल एडिशन जो इफेक्ट है वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए का है जी. तो ये केस अभी भी खुलेंगे? नहीं सर, मेरे हिसाब से ये केसेस अब नहीं खुल सकते क्योंकि जब आप 1 अप्रैल 2021 जैसे मैंने कहा ना, ये आप देखेंगे जो अगर आप टेबल देख पा रहे हैं तो 15, 16 ये वाली अगर आप टेबल देखेंगे तो 15, 16, 16, 17 और 17, 18 ये तभी रीओपन हो सकता है आफ्टर 1 अप्रैल 2021 अगर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस इज 50 लाख रुपीस और मोर. सो अगर उससे कम है तो CBDT के साथ चलेंगे ना? हाँ जी. ये तो CBDT के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलेंगे ना सर? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये CBDT का इंस्ट्रक्शन टू दैट एक्सटेंड ये बिल्कुल गलत है सर. और अगर मान लीजिए वो रीओपन भी करते तो हमारे को ये चैलेंज बिल्कुल करना चाहिए. मेरे हिसाब से इन टाइम्स टू कम आप देखेंगे साल 6 महीने में ये CBDT का इंस्ट्रक्शन मैं तो जो कर पा रहा हूँ गेस कि ये चैलेंज होगा और कहीं कोई ना कोई कोर्ट इसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन निकालेगा. बट अनफॉर्चुनेटली ये जो इंस्ट्रक्शंस है बहुत ही गंदी तरीके से ड्राफ्टेड हैं और फालतू वो वाले साल भी इन्होंने ऐड कर दिए जो कि नए लॉ में ओपन ही नहीं हो सकते थे. और तो सर 148A में ही चैलेंज कर दें हम पहले जी. 148 का नोटिस आते ही इसको चैलेंज करें हम पहले ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो ये शोकॉज नोटिस आएगा, शोकॉज नोटिस का रिप्लाई जब आप देंगे तो आप इसमें बिल्कुल लिखिए कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आफ्टर 1 अप्रैल 2021 द न्यू लॉ न्यू रेजिम विल किक इन, द टाइमलाइंस एज पर द न्यू रेजिम विल किक इन एंड अकॉर्डिंगली 149 अगर मैं देखूं तो ये सारे टाइम बारिंग हो गए, बार्ड बाय लिमिटेशन है तो इसको रीओपन आप कर ही नहीं सकते. तो हेंस दे मे प्लीज बी ड्रॉप्ड. थैंक यू सर. ओके. और किसी का एनीवन है? सॉरी सर, किसी और की क्वेरीज है सर? नमन जी का चैट में क्वेरी पड़ी है, इफ यू वांट आई कैन रीड इट.
Yeah, I'm not able to. What if the AO issues 143(2) notice in the end of the proceedings but before issuing final order? ये हमारे को बिल्कुल चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि 143(2) का जो नोटिस है वो जब 148 का नोटिस इशू होने के बाद फिर 143(2) का नोटिस इशू होगा, एंड देन ओनली नॉर्मल स्क्रूटनी असेसमेंट प्रोसीडिंग शुड स्टार्ट. अगर असेसिंग ऑफिसर लेट इशू करता है देन दिस शुड बी चैलेंज्ड इन द अपीलेट प्रोसीडिंग्स, अगर फिर भी कोई एडिशंस होते हैं. सो 143(2) का नोटिस इशू होने के बाद ही असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ये चालू हो सकती हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स तो कंप्लीट होने वाली हो और फिर 143(2) का नोटिस हो. दैट अकॉर्डिंग टू मी इज टोटली इनकरेक्ट एंड शुड बी चैलेंज्ड. Thank you so much, sir. Any other queries for the participant from the participants? Okay. It was really nice to hear you, sir. Now I'll pass the mic to the chairman, CA Kuldeep Gupta ji. Sir. थैंक यू सो मच विशाल जी. रोहन सर, एक छोटी क्वेरी और थी. सुरेश अग्रवाल सर हैं रायपुर से. Yes, sir. उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है whether there is any internal instruction to the assessing officer to issue notice under section 148 even if reply of notice under section 148A have been given. नहीं सर, इंस्ट्रक्शंस तो अभी जो पब्लिक डोमेन में 11 मई वाले इंस्ट्रक्शंस हैं वही हैं, और उसके तहत ये कहा गया है कि जो भी 148 के नोटिसेस इशू हुए हैं 1 अप्रैल 2021 के बाद और जिस बेसिस पे वो इशू हुए हैं उन सब के जो भी एविडेंसेस हैं जो असेसिंग ऑफिसर के पास हैं वो सब असेसी को कन्फ्रंट करने होंगे और असेसी को 2 वीक का टाइम लिमिट दिया जाएगा उसको रिप्लाई करने का. सो इसके अलावा और कोई इंस्ट्रक्शंस, इंटरनल इंस्ट्रक्शंस मेरे हिसाब से नहीं है. और ये जो इंस्ट्रक्शंस जो 11 मई वाले भी हैं वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है आशीष अग्रवाल का उसमें भी ये लिखा हुआ है, तो उसके परसुएंट में ही ये इंस्ट्रक्शंस इशू है. इसके अलावा और कोई नहीं. Thank you so much, Rohan Sogani sir, for your wonderful session. Because अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में बहुत सारे कंफ्यूजन थे और जयपुर ब्रांच ने इसके ऊपर बैक टू बैक प्रोग्राम्स करवाए हैं इसके ऊपर. आई होप मेंबर विल रियली एंजॉय दिस सेशन. आपके अगर और भी कोई प्रोफेशनली किसी टॉपिक पे अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि इस पे सेशन होना चाहिए, एक्सपर्ट का व्यू आपको जानना है या कुछ किसी पे करवाना है, आप सभी मेंबर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपनी जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. जयपुर ब्रांच की मेल आईडी पे भेज सकते हैं, मुझे पर्सनली भेज सकते हैं या किसी भी मैनेजमेंट कमेटी मेंबर के साथ आप शेयर कर सकते हैं. साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी मेंबर जयपुर ब्रांच की एक्टिविटी में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है एज ए मॉडरेटर, एज ए स्पीकर, एज ए टीम मेंबर फॉर वेरियस प्रोग्राम्स, बिकॉज आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस जयपुर ब्रांच में होने जा रही है. 9 और 10 जुलाई को मेंबर कॉन्फ्रेंस है और मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में 9 और 10 जुलाई को तो स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस है और अगस्त के महीने में हम मेंबर कॉन्फ्रेंस का प्लान कर रहे हैं. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है प्लीज आप हमें बताइए. साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जयपुर ब्रांच के नई मेंबरशिप डायरेक्टरी पे वर्किंग चल रही है. आपके पास मैसेज भी आया होगा, आपके पास कॉल भी आया होगा या आपके पास जयपुर में मतलब ऑफिसेज में स्टाफ ने भी विजिट की होगी. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये काम आप फटाफट से कर लें क्योंकि 31 मई हमने डेडलाइन रखी है. 31 मई तक जिन मेंबर्स की डिटेल्स अपडेट हो जाएगी उनका नाम डायरेक्टरशिप में डायरेक्टरी में आ जाएगा. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए और इस काम के लिए एज सुन एज पॉसिबल अपडेट कीजिए. Thank you so much, Vishal Sharma ji, for nice moderation of the session. Thank you so much. Thank you all the participants. Thank you, Kuldeep ji. Thank you, sir. Thank you, Vishal ji. Thank you, sir. Thank you. Thank you.